So shall I start? Yeah, proceed. Yeah. A very good morning to one and all. I welcome you all for this national webinar. Myself, Dr. Leena Mishram, on behalf of Mahatma Phule AC College, and as a chairman of Women Development Cell, would like to welcome you all for this national webinar on 75th year of independence with special perspective to empowerment of women, jointly organized by Department of History, Internal Quality Assurance Cell, and Women Development Cell. It is absolute privilege to welcome today's resource person, Dr. Anil Bankar sir, Head Faculty of Humanities from Institute of Distance and Open Learning, University of Mumbai. I welcome today's keynote speaker, Dr. Meghna Sharma, Director, Center for Women's Studies, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Rajasthan. I welcome Honorable Principal, Dr. Ganesh Thakur sir, who has taken initiative and has been instrumental in organizing series of webinars successfully. I also welcome Dr. Sunil Pardesi sir, Assistant Professor, Department of History, Dr. Bhanudar Sinde sir, Organizing Secretary and Head of History Department. I welcome Mr. Sopan Gove, co-convener of today's webinar and also IQAC coordinator. I must welcome Vice Principal A.G. Rokde sir, Vice Principal Dr. Madhvi sir, Vice Principal R.A. Patil sir. They have been very supportive throughout the organization of the webinar. A warm welcome to all the eminent guests, faculty of different colleges, and all the student participants for the national webinar on 75 years of independence with special perspective to empowerment of women. Women empowerment refers to the gender equality. Gender equality implies a society in which women and men enjoys the same opportunity, rights, obligations in all spheres of life. Empowering women means granting women the freedom to make life choices, freedom to make decisions for themselves. Pandit Jawaharlal Nehru quoted, "When women moves forward, the family moves, the village moves, and the nation moves." A woman is the architect of healthy society. But even after almost 7 decades of independence, women are still subjected to discrimination in the society, social and as well as educational field. According to a report, India is positioned at 29th rank among 146 countries across the globe on the basis of gender inequality index. When we are celebrating 75th year of independence, women in Indian society are still being victimized, humiliated, and tortured, also exploited. And hence, empowering women to ensure the right to equality, as mentioned in the Constitution of India, is most effective way to eradicate such evils from the society. Keeping the context in mind, today's webinar aims to initiate a dialogue on status of women in post-independence Indian society. We have with us Honorable Principal Dr. Ganesh Thakur sir, ex-secretary of Rayat Shikshan Samstha, a prominent academician, an excellent administrator, and a dynamic personality. Under sir's leadership, a college is awarded with Best College Award by University of Mumbai, accredited by NAC at A grade. Principal sir has also been awarded Best Principal Award by University of Mumbai. Dr. Ganesh Thakur sir is our wings of light, a pillar of strength, and constant source of motivation. Sir, I request you to deliver a welcome address. Over to you, sir. Good morning. At the outset, I pay my tribute to great social reformer and visionary educationist of Maharashtra, Mahatma Jyotiba Phule and Karmavir Bhavarao Patil, for their selfless service to the masses. Dignitaries present online for this national level webinar, keynote speaker Dr. Meghna Sharma, Director, Center for Women's Studies, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Rajasthan. Resource person, Dr. Anil Bankar, Head, Faculty of Humanities, Institute of Distance and Open Learning, University of Mumbai, Maharashtra.
principals and directors of different institutes in India, vice principals of our college, Professor Dr. Naresh Madhvi, Dr. Rajaram Patil, Mr. Anil Rokhde, head of the departments, convener of this webinar, and coordinator of Internal Quality Assurance Cell, Mr. Sopan Gove, organizing secretary and head department of history, Dr. Bhanudas Shinde, Dr. Leena Meshram, chairman, Women Development Cell, Dr. Sunil Pardeshi, all the participants from different states of India, faculty members, research scholars, and dear students. It is my extreme pleasure to welcome you all on behalf of Mahatma Phule Arts, Science and Commerce College, Panvel, for this national webinar jointly organized by Department of History and Women Development Cell in association with Internal Quality Assurance Cell on the topic 75 years of independence with special perspectives to women empowerment. Friends, our college is affiliated to University of Mumbai and is run by Rai Shikshan Samstha, which is one of the largest educational institutes in Asia. Our parent institution basically works for the overall development of lower strata of the society by uplifting their educational standard. Our founder, Bhaurao Paigonda Patil, was honored with Padma Bhushan Award from central government and Doctor of Letters degree from University of Pune for his outstanding contribution in the field of education. Our college was established in 1970 with a vision to provide quality education to all classes of the society. In true sense, we are marching ahead with the same principles to achieve the excellence in the field of higher education. It is matter of pride to mention that our college completed 50 years to its establishment. Our quest for excellence is reflected through some of our outstanding achievements in the recent past. A grade in third cycle of NAAC accreditation with CGPA score of 3.18, Best College Award from University of Mumbai, Karmavir Puraskar from our parent institution, Government of Maharashtra successive prizes in Jagar Janivancha Abhiyan project, ISO 9001-2015 certification from International Accreditation Forum, and DBT Star College grant from Department of Biotechnology, Government of India. It reminds me a famous quotation of our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. The difficulties in the life do not come to destroy you, but to help you realize your hidden potential and power. We worked on the same line to utilize COVID-19 pandemic for the organization of online academic activities. We successfully organized 15 international and national webinars in the previous academic year. Today's national webinar is the 7th webinar of this academic year. Dear friends, women constitute almost 50% of the world's population, but India has shown disproportionate sex ratio, whereby females' population has been comparatively lower than the males. As far as their social status is concerned, they are not treated as equal to men in all the places. In the Western societies, the women have got equal rights and status with men in all walks of life. But gender disabilities and discriminations are found in India even today. The paradoxical situation has such that she was sometimes concerned as goddess and at the other times merely as slave. Now the women in India enjoy a unique status of equality with the men as per the constitutional and legal provision. But the Indian women have come a long way to achieve the present position. First, gender inequality can be traced back to the historic days of Mahabharata, when Draupadi was put on the bed as a commodity. History is a witness that woman was made to dance both in private and public places to please the men. In the Indian society, a female was always dependent on the male members of the family even few years ago.
A female was not allowed to speak with the loud voice in the presence of elder members of the family. She has very little share in political, social, and economic life of the society. In the early 20th century, it was the rise of the national movement under the leadership of Mahatma Gandhi, who was in favor of removing all the disabilities of women. At the same time, Rajaram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, and various other social reformers laid stress on women's education, prevention of child marriage, and withdrawals of evil practice of sati. The national movement and various reform movements paved the way for their liberation from the social evils and religious bans. After independence of India, the national leaders recognized the importance of equal social position of women with men. The Hindu Marriage Act has determined the age for marriage, provided for monogamy and guardianship of the mother, and permitted the dissolution of marriage under specific circumstances. Under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, an unmarried woman or widow can also take child in adoption. Similarly, the Dowry Prohibition Act 1961 says that any person who gives, takes, or supports the giving or taking of dowry shall be punished with imprisonment, which may extend to 6 months. The Constitution of India assures equality of sexes and, in fact, grants special favors to women. This can be found in 3 articles of the Constitution. Article 14 says that the government shall not deny to any person equality before law or equal protection of the law. Article 15 declares government shall not discriminate against any citizen on the ground of sex. Article 15(3) makes a special provision enabling the state to make affirmative discriminations in favor of women. Article 42 directs the state to make provision for ensuring just and human conditions of work and maternity relief. Empowerment of women would mean equipping women to be economically independent, self-reliant, have positive esteem to enable them to face any difficult situation, and they should be able to participate in the development activities. The empowered woman should be able to participate in the process of decision making. In India, the Ministry of Human Resource Development and National Commission for Women have been working for women empowerment. The 73rd and the 74th amendments to the Constitution of India have provided some special powers to women regarding 33% reservation of seats, whereas the report shows that the legislature with the highest percentage of women are in Sweden, 42.7%, Denmark, 38%, Finland, 36%, and Iceland, 34.9%. In India, the new Panchayati Raj is the part of the effort to empower women, at least at the village level. The year 2001 was observed as the year of women's empowerment. During the year, a landmark document was adopted, the National Policy for the Empowerment of Women. The government has adopted different schemes and programs, that is National Credit Fund for Women, Food and Nutrition Board, and Information and Mass Education. Today, we have seen women chief ministers, women prime minister, women president, leaders of different political parties, well-established businessmen, and leaders in various fields. Women are also involving in human development issues of child rearing, education, health, and gender parity. Many of them have gone into making and marketing of a range of cottage products like pickles, tailoring, embroidery, etc. Today, we have noticed different acts and schemes of the central government as well as state government to empower the women of India. But in India, women are discriminated and marginalized at every level of the society
whether it is social participation, political participation, economic participation, access to education, and also reproductive health care. It has been observed that women are found to be less literate than men. Thus, increasing education among women is very important in empowering them. It has also noticed that some of the women are too weak to work. They consume less food but work more. Therefore, from the health point of view, women folk who are weaker are to be made stronger. Another problem is the workplace harassment of women. There are so many cases of rape, kidnapping of girls, dowry harassment, and so on. For this reason, they require empowerment of all kinds in order to protect themselves and to secure their purity and dignity. Women empowerment cannot be possible unless women come with and help to self-empower themselves. There is a need to formulate reducing feminized poverty, promoting education of women, and prevention and elimination of violence against women. I am confident that the keynote speaker of the webinar and the resource person will enlighten us with their scholarly talks on the theme of the webinar. I am really grateful to all the participants for their awesome response to the webinars organized by our college. I am sure that all the participants will cooperate to make this webinar a grand success. Before I conclude, once again, I welcome you all for this online national webinar. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for such a warm welcome and a brief introduction of today's webinar and also about the status of women in Indian society. Thank you so much, sir. I now request Ms. Sonu Tanwar, Madam, Assistant Professor in Biotechnology, to introduce our today's keynote speaker, Dr. Meghna Sharma. Over to you, Sonu, Madam. Thank you, ma'am. Am I audible? Okay. Good morning, one and all present here. It's an honor for me to welcome such a dignified personality, our today's keynote speaker, Honorable Dr. Meghna Sharma, Madam. Ma'am is the Director of Center for Women Studies, Coordinator of Rajasthani Department, and currently she is working as an Assistant Professor in the Department of History at Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Rajasthan. Ma'am has over 19 years of experience in teaching as well as in research. She is a gold medalist in journalism and mass communication, has authored and edited 9 books, works for women empowerment and gender equality. Ma'am has received so many prestigious awards in the sphere of literature, academics, and social service. She is a member of editorial board of various academic magazines as well as literary bodies, and ma'am has interviewed by various channels including Doordarshan and Akashvani. Ma'am is it's an honor for us to have you as a today's keynote speaker, and thank you, ma'am. Over to you, ma'am. नमस्कार, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं. So, let me ask the organizers first that shall I speak in English, shall I speak in Hindi, or shall I be bilingual? The targeted folk is Hindi speaking or English speaking or bilingual? Bilingual will be okay. Yeah. Okay, fine. जी, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर्स को ही संबोधित करना चाहूंगी इतना खूबसूरत विषय रखने के लिए. ये बहुत प्रासंगिक विषय है. इट्स अ रेलेवेंट इश्यू दीज डेज, वुमेन एम्पावरमेंट, और इसके बारे में हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर, आपको कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड. हैट्स ऑफ टू यू, यू आर द कैप्टन ऑफ दिस शिप. सारे ऑर्गेनाइजर्स को, मेरे साथ में जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज के हेड हैं प्रोफेसर अनिल बंकर सर, आपको भी मेरा हार्दिक प्रणाम. साथ में गणेश ठाकुर सर, आपने बहुत खूबसूरत बातें कही. कुछ बातें ऐसी थी जो मैं भी आगे इनको बढ़ाऊंगी आपकी बातों को अपने स्पीच में. लीना मैडम, यू आर कंडक्टिंग इट सो वेल. कांग्रेचुलेशंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच अ वाइब्रेंट टॉपिक
for this national webinar. Sunil Pardeshi sir, my regards to Sopan Gove sir and Bhanudas Shinde sir, who is the head Department of History. Me too, a faculty member in the Department of History here. तो मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट हिस्ट्री है, बहुत बहुत कनेक्टेड महसूस करती हूँ मैं जब हिस्ट्री डिपार्टमेंट से इन्विटेशंस आते हैं। और खास तौर पर मेरे मित्र राम जामनोके सर यहाँ हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, क्योंकि आप सभी से रूबरू होने का जो ये मंच उन्होंने मुझे दिया है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। नाउ लेट अस बिगिन विद द पास्ट, क्योंकि हिस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, मी और फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। हम अगर इतिहास में नहीं जाते हैं तो मेरे ख्याल से हम किसी भी चीज को, कोई भी इमारत हम खड़ी कर रहे हैं, कोई भी चर्चा हम तैयार कर रहे हैं, कोई किताब हम तैयार कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, वी हैव टू गो इनटू द हिस्ट्री। तो यहाँ 166 पार्टिसिपेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को भी सादर अभिवादन, प्रणाम, बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद इस सेमिनार पर रहेगा, इसी आशा के साथ हम अपनी बात आरंभ करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ होंगे जिन्हें रिसर्च में इस तरह की सेमिनार से, बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगी, स्टूडेंट्स प्लीज सिट विद अ पेपर एंड पेन ऑन योर डेस्क, ऑन योर टेबल, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं जिन चीजों को आप आगे रेफर कर सकते हैं किताबों के जरिए। और स्पीकर्स, कई बार जब मैं, तो मेरी आदत है कि मैं जब वेबिनार्स ज्वाइन करती हूँ तो अपना ईमेल आईडी भी वहां छोड़ती हूँ कि स्टूडेंट्स बाद में भी कनेक्ट कर सकें। कई बार होता है कि हम ओपन डिस्कशंस नहीं करवा पाते ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, टाइम की मर्यादा हम सभी को रखनी होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे कैन कॉन्टेक्ट फर्दर द स्पीकर्स, द की नोट स्पीकर्स, द रिसोर्स पर्सन्स एंड सेशन चेयर्स एंड ऑल। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द मॉडर्न हिस्टोरिकल सीन। हम बात तो करेंगे 75 साल की, बट मैं स्टार्ट करूंगी स्वामी दयानंद सरस्वती से। आदरणीय ठाकुर सर ने नाम लिया था, अभी राजा राम मोहन रॉय का आपने नाम लिया था, विवेकानंद जी का आपने, सोशल रिफॉर्मर्स में जो शुरुआत बताई, ईश्वरचंद विद्यासागर की आपने बात करी। बिल्कुल, मैं बात करती हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती से आरंभ करती हूँ, क्योंकि जो बातें पहले हो चुकी हैं उन्हें रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, हम उन्हें सुन चुके हैं। दयानंद सरस्वती एक ऐसे रिफॉर्मर हुए जिन्होंने अपने समय में विमेन एम्पावरमेंट की बात की। उस समय में व्हेन विमेन वाज एट द बैक साइड, एट द बैक फुट, बैक फ्रंट पर थी, वो मोर्चा नहीं संभालती थी, वो सिर्फ घर की मर्यादाओं में, घर की सीमाओं में कैद थी। The society was witnessing parda system, society was witnessing child marriage, society was under the clutches of widow remarriage system, जिसको eliminate करने के लिए, जिसको abolish करने के लिए social reformers they came forward। और उनके आगे आने से ये benefit हुआ कि जो 1857 का जो पहला अटेम्प्ट था स्वतंत्रता को हासिल करने का, जिसमें सबसे ज्यादा खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो रानी झांसी का जो प्रभाव था, जो इम्पैक्ट था, लेकिन बावजूद उसके हमें स्वतंत्रता मिलते मिलते 1947 तक जाना पड़ा। 100 साल पहले फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे अक्सर किताबों में क्रांति का नाम दिया जाता है, मैं उसे कहती हूँ कि इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स फ्रीडम, टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ इंडियाज फ्रीडम। तो ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, उसकी रूट्स में अगर हम जाएंगे तो सोशल रिफॉर्मर्स को पता चला कि हम अपने शास्त्रों से, हम अपने मूल्यों से, हम अपनी वैल्यूज से, अपने एथिक्स से बहुत दूर निकल आए हैं और हम लोग बहुत डाइवर्ट हो चुके हैं। तो गो बैक टू द वेदास। दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। जब वेदों की ओर लौटेंगे तो हम उस संस्कृति जिसके लिए भारत विश्व गुरु जाना जाता है, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि विश्व गुरु की पदवी भारत को दी गई, तो वो इसीलिए दी गई कि स्कॉलर्स, इवन मैं आपको शेयर करूं, व्हेन आई वेंट टू थाईलैंड फॉर डिलीवरिंग माय lectures in the University of Bangkok, people were anxiously awaiting for an Indian scholar. I was a newcomer at that time, but I had seen the anxiousness of those people. They worship Indian scholars like anything. और हम अपने देश में जो है क्या महसूस कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, पढ़ी लिखी महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा।
तो 75 इयर्स की जब हम बात करें, हम मना तो रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, लेकिन अमृत महोत्सव में बहुत सारी अच्छी बातों के साथ हमें डिस्कस करना होगा कि क्या पॉइंट्स हैं जो छूट गए हैं सरकारी नीतियों के स्तर पर या इंडिविजुअल लेवल पर या सामाजिक स्तर पर। और हम लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इसमें अच्छा रोल ये प्ले कर सकते हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के पास युवा शक्ति उनके कंट्रोल में होती है। तो हमारे पास वो युवाओं की शक्ति है। युवा का विपरीत होता है वायु, और वायु में होता है वेग। उस वेग को हम थाम कर, उसे पकड़कर हम अपनी बात को आगे ले जाते हैं। आपने सुना होगा कि इतिहास में इंगित है कि जितनी भी क्रांतियां हुई उसमें युवा वर्ग का, उसमें शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम शुरू करते हैं यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ना फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति में भी महिलाओं का प्रयाण था वर्साई के महल की तरफ, और महिलाओं ने लीड किया था उस मार्च को। इट वाज अ मार्च टुवर्ड्स द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, एंड वर्साइल्स के पैलेस में जो किंग और जो महारानी थी उन्हें वहां से लेकर के आने का काम, तो वो लीड ली, महिलाएं वहां से लीड करती आ रही हैं। हम तो अभी 75 बरस ही मना रहे हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप बात करें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो आप देखिए कि कितना जेंडर बायस है कि एक महिला प्रेसिडेंट वो डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री आज तक नहीं दे पाया है, लेकिन हमारे देश ने महिला राष्ट्रपति भी दी है। हमारे, जैसे ठाकुर साहब कह रहे थे, महिला चीफ मिनिस्टर्स भी दी हैं, महिला गवर्नर्स भी दी हैं, और राजस्थान में तो अभी अभी कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में पहली बार एक महिला उषा शर्मा को बिठाया गया है। वो राजस्थान के इतिहास में ये सबसे बड़ी बात है, और इस गणतंत्र दिवस का एक उपहार मैं कहूंगी कि ऐसा चयन किया गया है। तो आगे आ रही हैं महिलाएं, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जो दिल पर चोट करते हैं। उन बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे। बात की थी ठाकुर सर ने महात्मा गांधी के रिवोल्ट्स की। बिल्कुल सर, मेरे भी पेपर्स हैं महात्मा गांधी और फ्रीडम स्ट्रगल पर, जिन्होंने जन आंदोलन किए, गांधी लेड मास मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये मूवमेंट्स ऐसे थे जिनमें उन्होंने इस बात को ही ओपनली डिक्लेयर्ड दैट विदाउट वीमेन वी कैन नॉट स्टेप फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर से बाहर, आप देखिए वो चाहे पिकेटिंग के हों, जो विदेशी जो कपड़ों की होली जलाई गई उसमें महिलाओं को आगे आना पड़ा, आने पड़ा नहीं, वो अपनी इच्छा से आगे आई। और उसके बाद आप देखिए कि वो चरखा काटने का जो सिस्टम, गांधी का चरखा आज भी, मैं गुजरात विद्यापीठ की एक सेमिनार में गई थी 2-3 साल पहले, तो वहां हमने गांधी आश्रम को विजिट किया, तो आज भी वो चरखा, और वो चरखा देखते ही हमें वो हाड़ मांस का पुतला नजर आ जाता है चरखा काटते। और उन्होंने कहा कि चरखा काटना है, हमें ब्रिटेन से कपड़ा नहीं खरीदना है, जो हमारा रॉ मटेरियल लेकर बाहर जाते हैं। तो महिलाओं से भी ये कहा गया कि खाली समय में आप उस चरखे को काटिए, और महिलाओं ने इसे फॉलो किया। आप अगर बात करें बंगाल की, पश्चिम बंगाल में जो मातंगिनी हजारे थी, वो एक ऐसी महिला रही जिन्होंने लीड किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। शी वॉज अ चाइल्ड विडो, और चाइल्ड विडो होने के बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया था अपने घर से, उनकी पति की मृत्यु के बाद। और गांधी जी की आंदोलन, गांधी जी की दांडी मार्च वो देखा करती थी, और उसे देखने के बाद उनके मन में जागृति आई कि अब मेरे जीवन का कौन सहारा, क्यों ना मैं देश के लिए अपनी जान दे दूं। तो आप देखिए कि ऐसे लीडर्स इस देश ने दिए हैं जिन्होंने इंस्पायर किया, और फिर उन महिलाओं ने उन लीडर्स की बात को आगे पहुंचाकर उन्हें अमर कर दिया। तो द इंस्पिरेशन माइट बी मेन, but implementation has been done by women, and they have been given mortality by women. तो महिलाएं वो पहिए हैं जिन्होंने पॉलिसीज, आप बना लीजिए कितनी भी पॉलिसीज, उन्हें जब आप लागू करते हैं, जब वो घरों तक बात आती है, तो घर चलाने वाले, अक्सर कहा जाता है कि होम मिनिस्टर्स होती हैं। women are डेफिनेटली आई कैन से दैट कैद है एक महिला। आज वर्किंग वुमेन की कैटेगरी में कितनी महिलाएं होंगी? आज हम आपको दिखाई दे रहे हैं एम्पावर्ड वुमेन की तरह बैठे हुए, लेकिन जब मैं गांव में जाती हूँ तो स्थितियां बहुत विचित्र हैं। आज भी ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम में पति और पत्नी को एक ही तरह का जीवन जीने की आजादी नहीं है। ट्रेडिशनल सेटअप्स में अभी भी महिलाओं के लिए खाना बनाने का काम
महिलाओं को घर संभालना है, महिलाओं को गार्डन को देखना है, महिलाओं को बच्चे। और अगर महिला कहती है कि मैं अपनी बात को आगे रखना चाहती हूँ, मैं आगे आना चाहती हूँ, तो आज भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं ये कैसी महिला है जो अपने परिवार से ज्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रही है। तो अपने आप की बात करना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। आज भी हमारा देश, हालांकि महिला राष्ट्रपति दे रहा है, महिला गवर्नर दे रहा है, महिला सीएम दे रहा है, महिला कैबिनेट सेक्रेटरीज दे रहा है, महिला मंत्री दे रहा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पर भी मैं आऊंगी कि वो स्टैब्लिश हुए हैं, लेकिन बातें वहां जाकर के डिसॉल्व हो जाती हैं जब हम इंटीरियर्स में जाते हैं, जब हम रूरल एरियाज में जाते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस के बारे में ठाकुर सर ने बात की, बिल्कुल ये प्रोविजंस हैं सर, बच्चों की रिसर्च में ये काम आएंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, उसके अलावा डावरी की बात आपने की, उसके अलावा हिंदू सक्सेशन राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो ये अधिकार महिलाओं को मिला है, ये संपत्ति का अधिकार प्राचीन भारतीय इतिहास में महिलाओं के पास नहीं था, वो पराई समझी जाती। और ये पराई की जो दर्द है ना सर, ये चूंकि मैं कविताएं भी लिखती हूँ, तो ये पराई होने का कि उसका घर कौन सा है, जिस घर में वो बहू बन के जाती है वो, या जिस घर से वो निकल कर जाती है वो कहते हैं अब तुम उस घर की हो गई, और वो कहते हैं ये दूसरे घर से आए हैं। तो महिला के उस दर्द को समझने की हमें जरूरत है कि वो कहाँ की है। और अगर वो अपने मायके में अपनी अस्तित्व को रखने की बात करती है, तो वो उसे कहते हैं तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। और जब दूसरे घर में वो बात करती है अपने अस्तित्व को रखने की, तो वहां ये कहा जाता है कि क्या तुम अपने घर से ये सीख कर आई हो। तो परंपराओं को निभाना ही महिलाओं पर क्यों थोप दिया जाता है, क्यों पुरुष को इस बात की पाबंदी नहीं है, हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी। मैं कभी भी ऐसे नारीवाद का पक्ष नहीं लेती जहां मैं ये कहूं कि ऑलवेज विमेन आर सुपीरियर टू मेन। नो, नीदर मेन नॉर विमेन आर सुपीरियर। हमें साथ चलना है, हमें साथ ही चल करके अपने अरमानों को पूरा करना है, अपने पॉलिसीज को पूरा करना है। क्योंकि किसी भी संस्थान में आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ, जब सिलेक्शंस होते हैं, जब सिलेक्शंस होते हैं तो वहां महिला और पुरुष दोनों के कॉम्बिनेशन में सिलेक्शंस होते हैं। और जरूरत पड़ती है जब आपको लड़कियों को ट्रीट करना हो, कई बार स्टूडेंट्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कुछ लेडी टीचर्स को हम वहां लगाएं। तो क्या जरूरत महसूस नहीं होती महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों पर जब लड़कियों से बात करनी हो? आप देखिए, जब हम मंदिरों में जाते हैं, जब हम रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, तो एक वुमेन को चेक करने के लिए वहां वुमेन स्टाफ लगाया जाता है। मैं जब थाईलैंड गई थी, मैं आपको बताऊं कि वहां टोल वसूलती हुई महिला, मैं 2013 की बात कर रही हूँ, 2013 में आई वाज देयर, और वहां पे टोल वसूलते हुए आधी रात को मैंने जब महिलाओं को देखा तो बहुत गर्व भी हुआ और कुछ आशंकाएं मन में आई कि हमारे देश में अगर आधी रात को टोल पर महिलाओं को बिठा दिया जाए तो घर वाले भी शायद अपनी रातों की नींदें चैन से सो नहीं पाएंगे, और उस महिला को भी 24 घंटे अपनी सुरक्षा की चिंता रहेगी। तो मैंने वहां पूछा, I asked the organizers, are these government employees? They said, yes, madam. तो मैंने कहा ये यहाँ सुरक्षित है या रात में बोले yes, madam, there is nothing like that. तो थाईलैंड जैसी छोटी सी कंट्री इतनी सुरक्षित है महिलाओं के लिए, तो हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी पावर्स हैं। हम ये बात करते हैं कि हमारी बहुत लंबी चौड़ी पॉपुलेशन है, तो हम महिलाओं के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। वर्तमान में जो बजट भी आया है वो भी एक महिला द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कुछ महिलाएं खुश हैं, कुछ महिलाएं अप्रसन्नता जाहिर कर रही हैं कि कुछ विशेष नहीं कहा गया महिलाओं के लिए, लेकिन बजट से ज्यादा भावना महिला के प्रति रखना जरूरी है। ये मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि अगर भावना होगी तो बजट भी हो जाएगा। महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने से अधिक अगर हम थोड़ा सा भी उनके लिए, एक महिला तो हमेशा त्याग की मूर्ति होती है, महिला हमेशा सहनशीलता की मूर्ति हो, वो स्वयं नहीं चाहती कि मैं पुरुषों से आगे खड़ी हो जाऊं, लेकिन वो साथ चलने की निश्चित रूप से अभिलाषी है। और इस बात को यदि हम ध्यान रखते हैं तो एक महिला बहुत सारा आउटपुट दे सकती है। एक महिला को एक क्रिएटर का हमने, आप देखिए हम पास्ट में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां पर एक महिला मदर गॉडेस की हमें मूर्ति मिलती है। यानी हमारे देश में महिलाओं को डिग्निफाइड पोजीशन जो हम देते हैं, इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उसका चूंकि
जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो पार्टीशन के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो दो प्रोमिनेंट सेंटर्स थे, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, ये दोनों केंद्र हमारे सीमा पार पाकिस्तान पड़ोसी देश के पास चले गए। तो चिंता जाहिर होने लगी कि क्या ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यूनान मिस्र रोमा, एक इकबाल साहब का शेर है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। तो हस्ती हमारी शायद इसीलिए नहीं मिटी कि महिलाओं ने हर कदम पर पुरुषों का साथ, पुरुषों ने चाहा चाहे नहीं चाहा लेकिन साथ दिया। तो मदर गॉडेस की एक मूर्ति जो सबसे ज्यादा मशहूर है, जो हम देख सकते हैं, उसके गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पेड़ का अर्थ है सृष्टि। इस पूरी सृष्टि का आधार, इस पूरी सृष्टि की जननी महिला को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानती आई है। तो आप देखिए कि महिला के बीज वहां से, और बहुत डिग्निफाइड पोजीशन थी अनटिल अनलेस कुछ बाहर के इन्वेडर्स ने अटैक किया और हमारी सिविलाइजेशन को अपने आप को सीमित करना पड़ा। अपने आप को बचाने के लिए महिलाओं को सती भी करनी पड़ी, महिलाओं को जौहर भी करना पड़ा कि हम आक्रमणकारियों के हाथ में ना पड़ जाएं। उन्हें अपने आप को बचाने के लिए, अपने सतीत्व को बचाने के लिए वो सारी कुरीतियों के तौर पर चलती चली आ गई। और तब खड़े हुए दयानंद, तब खड़े हुए राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती को बैन करवाया। और विडो रीमैरिज एक्ट 1956 हम जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही इनिशिएटिव था। और विमेन कमीशंस जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए हैं 90s में, स्टेट कमीशंस और नेशनल कमीशंस, ये तो निश्चित रूप से अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन इन कमीशंस के होने के बावजूद भी क्यों हम निर्भया हत्याकांड, क्यों हम प्रियंका रेड्डी के कांड, इन्हें हम आज भी विटनेस कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता मित्रों कि प्राचीन काल में हम जब पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे पास इन एट्रोसिटीज के लिए पन्ने हमें उपलब्ध नहीं होते कि इतना व्यभिचार महिलाओं के साथ हुआ? आज हम बात तो कर रहे हैं कि महिला आगे है, महिला हर क्षेत्र में, मैं भी बात कर रही हूँ, एम्पावर्ड वुमेन, बहुत सारी वुमेन यहाँ जुड़ी हुई हैं, हम सभी वर्किंग वुमेन हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ को हम हाउसवाइफ कहते हैं, इवन शी इज वर्किंग। एक हाउसवाइफ इज अ 24/7 एम्प्लॉय, बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज हर एट ऑल। हम सिर्फ वर्किंग वुमेन की तरफ देखते हैं, दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम होम। तो वहां से स्टार्ट होता है। इन एम्पावर्ड वुमेन जितनी भी यहाँ जुड़ी हुई हैं, मैं सभी को संबोधित करते हुए ये पूछना चाहूंगी कि आपको खड़ा करने में कितनी बड़ी भूमिका आपके महिला रिश्तेदारों की रही, आपकी माता की रही प्रत्यक्ष रूप में। तो हम महसूस करते हैं कि निश्चित रूप से हमारे पीछे इंस्पिरेशन माँ की ही रही कि हम आज खड़े रहे। मैं आपको बताऊं कि आई एम द सिंगल चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, और मेरे दोनों पेरेंट्स को कभी इस बात का मलाल नहीं रहा कि हमें बेटा नहीं है। उनसे लोग पूछा करते थे कि आपको बेटा नहीं है, आपको कैसा लगता है? आपको नहीं है तो आपको खालीपन महसूस होगा, बेटी तो अपने घर चली जाएगी। एंड दे ऑलवेज सेड कि हमने इसे ही बेटे की तरह पाला है। और माय फादर यूज्ड टू, मैं पर्सनल अगर बात करूं तो मेरे पिता तो बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमें 100 पुत्रों जैसा सम्मान हमारी बेटी ने दिलवाया है। आई नेवर रिग्रेट दैट आई डोंट हैव अ सन। तो महिलाओं से ये संबोधित करके कहना चाहूंगी कि ऐसा बनिए कि आपको ये महसूस ना हो, आपको बड़े करने वाले लोगों को कभी शर्मिंदगी महसूस ना हो। आप ऐसा अस्तित्व अपना खड़ा कीजिए। पॉलिसी मेकिंग पर बात करें, सरकारों ने बहुत सारे ये जो एक्ट्स हैं, ठाकुर सर, हम इनकी बात करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन एक जो प्रॉब्लम्स, जैसे हम फील्ड में जब जाते हैं, ये जिन महिलाओं को टारगेट करके ये बनाए जाते हैं, ये नियम, ये कानून, ये एक्ट्स, उन महिलाओं को इनके बारे में मालूम ही नहीं है। हम बताने की भी अगर कोशिश करते हैं, हमने नुक्कड़ नाटकों के जरिए, मैं सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज में एक्टिविटीज करती हूँ, तो नुक्कड़ नाटकों के जरिए हमने एक्टिविटीज की और वहां जाकर बात की। तो महिलाएं वहां गांव में, अगर उनके घर के पुरुष खड़े हैं, उनके पुरुष साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, हम कोशिश करते हैं हम पुरुषों को भी जोड़े। हमने हमेशा जेंडर इक्वालिटी की बात की है। महिलाओं का कार्यक्रम है तो पुरुष उसमें ना हो। आप देखिए लीड कर रहे हैं आज जो पोस्टर बना हुआ है, हम अगर अपनी सेमिनार का भी पोस्टर देखें, उसमें मात्र 2 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। तो कैसे कह दें कि पुरुष
सत्तात्मक हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, पुरुष दमित करता है, नहीं। जो जिन पहियों पर आज आज हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री के पुरुष हैं, आज हमारे ठाकुर सर पुरुष हैं, राम जामनुके सर जिन्होंने मुझे सेमिनार से जुड़ा पुरुष हैं, तो पुरुष इस मुद्दे पर बात करने लगे हैं, ये सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है। पहले पुरुष इस मुद्दे के बारे में न सुनना चाहते थे, न सोचना चाहते थे, न देखना चाहते थे। हमारी सोसाइटी में बहुत चेंज आया है, हमारा मेन वो चेंज हो रहा है, वो भी महिला को अपने साथ खड़े करने का इच्छुक हुआ है। ये महिला की योग्यता ही मैं कहूंगी कि उसने सिद्ध भी किया और पुरुषों ने इस बात को स्वीकार भी किया। तो ये स्वीकृति दोनों तरफ से होनी चाहिए। कई बार महिलाएं इतनी एम्पावर्ड फील करने लग जाती हैं कि वो ये समझने लग जाती हैं नाउ द रेन्स आर इन माय हैंड्स, तो वो पुरुषों को धकेलने का प्रयास करती हैं। तो मैं उन महिलाओं को भी इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि एक रथ है, एक सोसाइटी का, ह्यूमैनिटी का, एक घर का, गृहस्थी का, उसका एक भी टायर अगर कमजोर होता है या उसमें कम हवा होती है या बैलेंस नहीं होता, तो वो गाड़ी कभी भी स्मूथली रन नहीं कर सकती। तो कहीं भी ऐसे नारीवाद को हमें फेवर नहीं करना, या मैं नहीं करती, मैं अपना पर्सनल अगर आपको ओपिनियन बताऊं कि मैं ऐसे नारीवाद की पक्षधर नहीं हूं जहां पुरुषों को धकेल कर महिलाओं को अग्रणी, जी नहीं, हम साथ चलना चाहते हैं, सिर्फ आपके सहयोग में बराबर का साथ मांगते हैं, बराबर अपॉर्चुनिटीज। और जितने सारे एक्ट सर ने बताया, बिल्कुल 73rd और 74th अमेंडमेंट पे ये जो 33%, लेकिन सर आंकड़े कुछ और कहते हैं, अभी भी स्टेट लेजिस्लेचर्स में महिलाओं की संख्या इट्स लेस देन 9%। आप देखिए पैथेटिक कंडीशन कि अभी भी इतने कानून बनने के बावजूद भी 75 साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे पास लिस्ट है, अगर हम लिस्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, अगर हम उन सारे रिफॉर्म्स पर नजर डालें तो हमें लगेगा कि भारत से ज्यादा एम्पावरमेंट कहीं नहीं हो सकता। इतने कानून यदि महिला को पता हो, लेकिन महिला को पता भी नहीं है, और जिन महिलाओं को मालूम है उनकी पेशियां, उनकी सुनवाई होते होते 20 बरस 25 बरस बीत जाते हैं। कई केसेस में महिलाएं इस कदर उलझ जाती हैं कि उनके नतीजे सामने नहीं आते। स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करें, आप पार्लियामेंट में बात करें, कई तो ऐसे राज्य हैं जिसमें राजस्थान, केरला, हिमाचल, ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 33 से बढ़ाकर 50% तक कोशिश की कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो, लेकिन कुछ मामलों में महिलाएं रुचि नहीं लेती, और कुछ मामले में महिलाएं अगर रुचि लेती हैं तो उन्हें उनके काउंटर पार्ट्स द्वारा बिठा भी दिया जाता है। एक जो छोटी चीज मैं अक्सर अपने स्पीचेस में बोलती हूँ, वो बात यह है कि घर की महिला अपनी स्वयं अपनी घर की, जिसे मैं कहूं कि पति पत्नी के रिलेशन की बात करें, तो पति को अपनी पत्नी जब उससे आगे निकलती हुई दिखाई देती है तो उसके माथे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें आ जाती हैं कि मैं शायद पीछे रह गया, मेरी पत्नी मुझसे आगे निकल गई। तो ये एक पार्ट है जिस पर काम करने की जरूरत है, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी, कि महिला हमेशा उसे ऐसा महसूस ना होने दे, और पुरुष ये महसूस होने से बचे कि अगर उसकी महिला लीडरशिप ले रही है, आप विश्वास करेंगे कि जहां पे मातृ सत्तात्मक संस्थाएं हैं, वहां पुरुष बहुत गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमारे घर की, हमारे जीवन की, हमारे देश की, जैसे थाईलैंड में भी आप जब जाएंगे तो वहां पे पेट्रियार्की नहीं है, वहां मैट्रियार्की है। वहां माता पिता विवाह के बाद अपनी बिटिया के घर में रहना पसंद करते हैं, अपने पुत्र के घर में रहने की बजाय वो अपनी बिटिया के साथ रहे। मात्र सत्तात्मक वहां सत्ता है, जो हमारे यहाँ केरला में भी आप देखेंगे बहुत हाईली डिग्निफाइड। हम जब जाते हैं वेबिनार्स में तो देखते हैं, हम रिफ्रेशर्स में जाते, तो कोविड ने हम लोगों को इतना सीमित कर दिया, मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं वहां आकर आपके साथ इंटरेक्ट करती। एक सर, मुझे महसूस होता है ठाकुर सर की जो आई टू आई इंटरेक्शन होता है उसका हम ऑल्टरनेट तो ढूंढ रहे हैं, बट उस चीज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते इसके साथ। इट इज जस्ट एन ऑप्शन, और बिकॉज इट इज एन ऑप्शन, हम जब रिफ्रेशर्स करने जाते हैं, आप लोग भी अपने टीचर्स को भेजते होंगे, तो केरला के लोग भी वहां आ रहे हैं, बंगाल के लोग भी वहां आ रहे हैं, और मैं देखती हूँ कि वाकई द वे दे रिस्पेक्ट देयर वीमेन, आप देखिए ये रिस्पेक्ट की फीलिंग, ये इमोशंस अगर महिला की प्रगति के साथ पुरुष जोड़ देगा और जोड़े रखेगा, तो निश्चित रूप से महिला की स्थिति बहुत ज्यादा हम सुधार सकते हैं।
तो मैं जो बात कर रही थी कि दयानंद सरस्वती ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात का ही नतीजा हुआ कि डीएवी इंस्टीट्यूशंस और ये विडो रीमैरिज जो बात, जो आर्य समाजी, आप देखेंगे जब नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आर्य समाज के बहुत सारे लोगों ने विडो रीमैरिज पर काम किया और विडो रीमैरिज की जो इंस्पिरेशन दयानंद को मिली वो जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ उनकी मुलाकात हुई तो वहीं से उन्होंने उस बात को उठाया और उसके बाद ही उन्होंने नॉर्थ इंडिया में इस विचार को लेकर के गए। आप विश्वास करेंगे जिन महिलाओं के लिए वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उन विधवाओं ने जाकर ये कहा हाथ जोड़कर कि स्वामी जी आप ऐसा कोई सुधार सोसाइटी के लिए मत लाइए, हम दोबारा विवाह करने की तनिक भी इच्छुक नहीं है। आपने कई फिल्में देखी होंगी, आप अगर 60s की 70s की फिल्में देखेंगे तो विडो रीमैरिज पर मूवीज बनी है और उन मूवीज में हम देखते हैं क्या स्थितियां रहती थी। कई तो बाल विधवाएं हो जाया करती थी, उन्हें शादी का अर्थ ही मालूम नहीं होता था और वो विडो हो जाती थी और ताउम्र उन्हें एक इनऑस्पिशियस वुमेन के रूप में अपना जीवन थोप दिया जाता था, उन्हें जीना पड़ता था। और जब दयानंद ने इस बारे में बात की तो खुद महिलाओं ने इस बात का विरोध किया जाकर कि हम, क्योंकि उन्हें यह समझा दिया गया था कि दोबारा शादी करना पाप है, दोबारा जीने के सपने देखना पाप है। पति की मृत्यु के बाद आप देखिए प्राचीन काल में अगर जाएं या हम मेडिवल पीरियड में जाते हैं जिसे हम राजपूत एज कहते हैं या जिसे हम सल्तनत पीरियड कहते हैं, जिसे हम मुगल इरा कहते हैं, वहां तो सती ही हो जाया करती थी महिलाएं। लेकिन अब सती नहीं होती, अगर सती से बचाया उन्हें तो वो चाइल्ड विडो के रूप में इनऑस्पिशियस जीवन अपना जी रही हैं। तो उस अपवित्र जीवन से उन्हें किसी ऑस्पिशियस फंक्शंस में, रिलीजियस फंक्शंस में शामिल नहीं किया जाता था। वो बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में सिर्फ पूजा पाठ में अपना जीवन व्यतीत। और अगर कोई महिला ये कहती थी कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं दोबारा अपने जीवन को शुरू करना चाहती हूँ, तो उसे अच्छी महिला विद इन कोट्स, आप समझ रहे होंगे, अच्छी महिला नहीं माना जाता था कि ये कैसी महिला है जो अपनी पति की मृत्यु के बाद भी जीने की बात करती है, हंसने की बात करती है, खिलखिलाने की बात करती है, नए कदम बढ़ाने की बात करती है। तो ये जो स्थितियां हैं उससे तो हम अब काफी हद तक बाहर आ चुके हैं। आप देखिए कि बात कर रहे थे हम कि दयानंद ने जो, तो दयानंद की बात मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि मेरी रिसर्च फेमिनिस्ट अप्रोच ऑफ दयानंद पर है। और दयानंद ने एक ऐसे समय में ये बात की और उन्होंने उसके बावजूद उन विडोज की बात को नहीं माना और उन्होंने अपने आर्य समाजी जो उनके फॉलोअर्स थे उनसे इस बात के लिए आग्रह किया कि आप सभी इन विडोज के साथ मैरिज करें। विडोज ने यह भी कहा कि हमारे साथ कौन विवाह करेगा। तो आर्य समाजी दे केम फॉरवर्ड और उन्होंने उन्हें हाथ थामा, उन्होंने उस बात का आश्वासन दिया कि हम आपके साथ विवाह करके पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। तो आप देखिए इनिशिएटिव पास्ट में हो गया था, अभी तो हम बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस आल्सो देयर वर मेनी रिफॉर्म्स, देयर वर मेनी रिफॉर्मर्स जिन्होंने इस बात को शुरू कर दिया था। और शुरू करने की बात ये बानगी यहां तक आती है कि अगर हम स्टडी करते हैं 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की परेड को, तो यदि आपने नोटिस किया हो, यदि आपने ध्यान से देखा हो कि जो झांकियां निकाली जाती हैं, जो टेबल एक्सेस होते हैं, तो इंडियन पोस्टल सिस्टम की जो झांकी थी वो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित थी और उसे फर्स्ट प्राइज दिया गया। झांकियों को पुरस्कार दिया जाता है, उनमें आपस में कॉम्पिटिशन किया जाता है, कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन के बाद उनमें अवार्ड्स दिए जाते हैं और पहला पुरस्कार डाक व्यवस्था की, और उसमें एक महिला पोस्टमैन को दिखाया गया है और वो महिला अपने हाथ में एक गैजेट लिए है, तो वो टेक्नोलॉजी को भी हाथ में लिए है और साथ में उसके एक बैग है जिसमें वो लेटर्स थामे हुए हैं। तो आप देखिए आज हवाई जहाज महिला उड़ा रही हैं, आज ट्रेन्स महिला चला रही हैं। ये इन एम्पावरमेंट के जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को बहुत बारीकी से जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे करते हुए महिलाएं यहाँ आई। और ये टेबल एक्स जब उसका जो मिडिल पार्ट आप देखेंगे तो वहां महिलाएं एटीएम कार्ड्स इश्यू कर रही हैं, वहां महिलाएं, आप बैंक्स में जाइए, आज जब हम बैंक्स में जाते हैं, मैं अभी हाल ही में एक बैंक में गई, वहां मुझे मेरी 2-3 स्टूडेंट्स विंडोज पे काम करती हुई दिखाई, दे स्टूड अप और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे पता नहीं था कि वो बच्चियां यहाँ काम कर रही हैं और गले लग गई बच्चियां। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम
अपने ही पढ़ाए हुए बच्चों को जब कहीं मजबूती के साथ तो काम करते हुए देखते हैं, विंडोज पर बैठे हुए और बाकायदा वो बातचीत कर रही हैं, वो पर्दा जिसमें सीमित करना पड़ा था हमें अपनी महिलाओं को, और हमारी संस्कृति में तो कहीं था ही नहीं है। हम प्राचीन संस्कृति में देखें तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जाता है। टिल 25 years of age they used to follow brahmacharya ashram, then they used to follow from 25 to 50 grihastha ashram, then they used to follow the vanaprastha ashram till 75 years of age, then they used to follow the sannyas ashram till 100 years of age। तो ये 4 आश्रम्स में 25 बरस तक पढ़ाई का प्रावधान था, प्रोविजन था। ये जो मिडिल एज आई इसमें थोड़ी सी गड़बड़ स्थितियां हो गई, लेकिन उसको आधुनिक जो हमारे रिफॉर्मर्स थे, वो चाहे ज्योतिबा फूले, वो सावित्री, ये महाराष्ट्र में तो बहुत स्पेशल, ये जिनके नाम पर आज आपका इंस्टीट्यूशन आज खड़ा है, महात्मा फूले का तो जो रोल एजुकेशन में रहा है उसको तो भुलाया ही नहीं जा सकता। एक पायनियर रहे हैं वो इस काम को करने के। आप विश्वास करेंगे, जब पढ़ाने के लिए जाया करते थे ये लोग, महिलाओं को पढ़ाने की जब बात की जाती थी तो अंडे फेंके जाते थे, खराब सब्जियां, सड़े हुए टमाटर फेंके जाते थे। वो महिलाएं, वो सावित्रीबाई फूले ने ये सब झेल कर अमर होने के लिए, आप देखिए कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या भुगता, लेकिन वो आज हमारी दृष्टि में अमर हैं। तो जो भी काम महिलाएं आज कर रही हैं, हो सकता है आज आपका विरोध हो रहा हो, लेकिन आज के बाद, जब समय बीतने के बाद, आपको निश्चित रूप से पढ़ा जाएगा। और जो कुछ भी आप कर रही हैं, मेरा तो ये आप लोगों से आग्रह है, विनम्र आग्रह, कि जो एकेडमिक्स से जुड़ी महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से उसे किताबों के रूप में, अपने रिसर्च जो भी आप प्रोजेक्ट्स लेते हैं उनको आप किताबों के रूप में कन्वर्ट करते जाइए, क्योंकि किताबें आपको जीवन के बाद जीवन देती हैं। हमारा जीवन तो सीमित है, लेकिन वो किताबें जो आप लिख जाएंगे, वो किताबें जो आप डोनेट कर जाएंगे, वो किताबें आपके नाम पर चलेंगी और आपके विचारों को, आपके आपके किए हुए कर्मों को उसी से याद किया जाएगा। तो हम बुक्स पर, एकेडमिशियंस को रिसर्च पर, रिसर्च पेपर्स के पब्लिकेशंस बच्चे करवाते हैं, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रमोशंस के लिए, बट हम एडिटेड वॉल्यूम्स पर भी काम करें और किताबें ज्यादा से ज्यादा। मैंने खुद एक जैसे आपने वेबिनार की, मैंने एक इंटरनेशनल वेबिनार की थी सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन पर, लास्ट ईयर जून में मैंने लास्ट एकेडमिक सेशन में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था उसे, और उसकी एक किताब आ रही है, इट इज इन प्रोसेस। तो मैं उसको एडिट कर रही हूँ। तो मेरा ये भी आग्रह रहेगा, ठाकुर सर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर आप वेबिनार्स कर रहे हैं, ये आपका 7वां आयोजन है। निश्चित रूप से पिछली बार आपने बताया कि शायद 50 से अधिक आपने वेबिनार्स की, लेकिन जो भी इन वेबिनार्स में विचार आते हैं, हम इनको पॉलिसी मैटर के लिए जो विचार आते हैं, प्लस हो माइनस हो, इन्हें हम एक बुक फॉर्म में, एक बुकलेट फॉर्म में निश्चित रूप से इसको लेकर के आए, और लेके आने के बाद हम इन्हें अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को या हम सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भेज सकते हैं, ताकि आगे जो पॉलिसीज बनती हैं किसी भी विषय पर, सेमिनार्स होते हैं, आज तो विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, तो उन पॉलिसीज में इन निष्कर्षों को, दीज कंक्लूजन्स कुड बी इंक्लूडेड इन पॉलिसी मेकिंग। तो हम वहां तक, उस थिंक टैंक तक इसको पहुंचाने का माध्यम इन वेबिनार्स के थ्रू बन सकते हैं। अब मैं बात करूं अगर कि करंट में जो बातचीत हो रही है, करंट में क्या जरूरत है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स तो हैं, लेकिन इनको फैलाने के लिए हम लोग टीम्स बनाएं। जैसे हम जाते हैं, हम लोगों को ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज को एक विलेज को अडॉप्ट करना है, एंड वी हैव अडॉप्टेड एवरी टाइम, कुछ एक समय सीमा होती है, तो हम लोग उन अडॉप्टेड विलेजेस में जाकर महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं को, मैंने आपको बताया कि महिलाओं कुर्सियों पर नहीं बैठती, क्योंकि उनके घर के पुरुष, हमने जब पुरुषों को जोड़ा, तो जब अगर किसी का पति, किसी का ससुर वहां मौजूद है, तो वो महिला चेयर पे नहीं बैठती, नीचे बैठ जाती थी। तो हमने उन्हें उठाकर कहा कि चेयर खाली है, आप ऊपर बैठिए। तो शी यूज्ड टू से व्हाट शी यूज्ड टू से, नो, बिकॉज हमारे मेल काउंटरपार्ट्स यहाँ पे हैं, तो हम कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। ये आज की सिचुएशन बता रही हूं मैं आपको। ये वो भारत है जो प्रथम राष्ट्रपति भी दिया है, जिसने गवर्नर भी दिया। अब देखिए महिला कहाँ चली गई, हमारी कल्पना चावला कहाँ पहुंच गई, कोई स्पेस में वुमेन जा रही है, लेकिन हमारी ही महिला, हमारे ही देश की एक महिला है जो कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठ रही क्योंकि उनके घर के पुरुष वहां मौजूद हैं। वो घूंघट
में अपना मुंह छुपा रही है। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि पर्दे से ज्यादा आंखों की शर्म, आंखों का पानी, आंखों का लिहाज हम बच्चियों को सिखाएं। हम बच्चियों को ये कहें कि निश्चित रूप से आप उन परिवारों का विरोध कीजिए जो आपको पर्दे के लिए मजबूर करें, लेकिन अपने संस्कार, अपने लिहाज, अपना कल्चर, अपनी सभ्यता को हम साइड में ना रखें। हम अगर शालीन होंगे, इफ अ वुमेन इज डिसिप्लिन्ड, मजाल है कि कोई अत्याचार उसके साथ हो जाए। तो डिसिप्लिन को ना तोड़ते हुए हमें एम्पावरमेंट को आगे ले जाना है। ये मेरा स्टूडेंट्स को संदेश है कि हम अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ें। यदि हम अपने ही डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं वो कशिश हमारे मन में रहती है, वो चोर हमारे मन में रहता है कि हमने अपनी सीमाओं को, अब सीमा सीमा क्या होती है? सीमा को मैं आपको बताऊं कि जब मैं थाईलैंड में लेक्चर देने के लिए गई थी तो वहां मैंने इंडियन अटायर, जो साड़ी मैं आज पहन करके बैठी हूं, उसी प्रकार से आई वॉज एडमेंट कि मैं वहां विदेशी कपड़ों में लेक्चर नहीं दूंगी। आई विल बी वेयरिंग इंडियन अटायर एंड दे अप्रिशिएटेड अ लॉट the Indian beauty with Indian attire. We welcome, the anchor said, we welcome the Indian beauty with Indian attire. And the vice chancellor of that university, Dhonburi University, it was a university in Bangkok, Dhonburi Rajabhat University, the vice chancellor, she touched my pallu and she said, what material is this, Meghnaji? This is lovely. I said, I will gift you one when you will come to India. So this culture should be ahead. सबसे आगे आप इसको लेकर के जाइए और इस कल्चर को आप स्ट्रेंथन कीजिए। और जब आप अपने कल्चर पर अडिग रहेंगे तो मजाल है कि किसी भी प्रकार का आक्रमणकारी आपकी संस्था को, आपकी वैल्यूज को, आपकी एथिक्स को नष्ट कर दे। कोई भी हमें तब तक नष्ट नहीं करता जब तक हम सरेंडर नहीं करते। सो डोंट सरेंडर एट ऑल। और एट लास्ट, ये सारे एक्ट्स के बारे में डिटेल्स तो हमें कहीं भी मिल जाएंगी, बुक्स में भी मिल जाएंगी, इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी। लेकिन बच्चियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे कहनी है कि मैं एक बात जो बीच में रह गई थी उसे पूरी कर दूं, कि जो गांधी के मूवमेंट्स की ठाकुर सर ने बात की थी और मैंने भी उस बात को आगे बढ़ाया था, तो गांधी के मूवमेंट्स की लहर देखी कि वो चाइल्ड विडो मातंगिनी हजारे, उसने लीड किया अपने देश को। और वो चाइल्ड विडो, उनकी जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि यहाँ इतिहास विषय का कार्यक्रम है, ये इतिहास लीड कर रहा है, इससे इतिहास के बहुत सारे बच्चे यहाँ जुड़े हुए होंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दांडी मार्च निकला था, उसे उन्होंने अपनी झोपड़ी के सामने से निकलते हुए देखा था और उनके मन में पेट्रियोटिक फीलिंग्स जाग गई। तो पेट्रियोटिक फीलिंग्स इस कदर जाग गई कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो अपने देश का झंडा लेके वेस्ट बंगाल में वो खड़ी हो गई और पुलिस थाने के सामने से जब निकली तो उनको आदेश किए गए, ब्रिटिश आर्मी ने ये आदेश किया कि शूट हर, और उन पर गोलियां दाग दी गई। लेकिन उन्होंने अपने हाथ में जो झंडा थामा हुआ था वो गिर गई, मस्तक पर अंतिम गोली दागी गई। उनके मस्तक पर गोली दागने के बाद भी वो जमीन पर गिरी, लेकिन उन्होंने झंडे को थामे रखा। तो हम जब तक अपनी ट्रेडिशंस, कल्चर्स, हमारी एथिक्स, हमारी वैल्यूज का झंडा थामे रहेंगे तो वो विमेन कभी भी सप्रेस नहीं की जा सकती, वो विमेन कभी भी एक्सप्लॉइटेड नहीं की जा सकती। हम अपनी एजुकेशन को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एंड पार्टिसिपेट मोर एंड मोर इन दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। चिल्ड्रन, दे विल काउंट अ लॉट। ये एकेडमिकली सिर्फ एक ई सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बच्चों, आप महसूस कीजिए कि क्या महिलाएं जो आगे हैं आपसे, जैसे हम भी अपने जो सीनियर्स हैं उनसे सीखते हैं, आपसे आगे हम हैं। तो हमने जो कहा, आप कोशिश कीजिए कि कुछ बातें निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव लगी होंगी, कुछ बातों से आप असहमत रहे होंगे, लेकिन हम लगातार सीखते रहें, अपनी बातों को ऐसे मंचों से रखते रहें, बांटते रहें। अनडाउटेडली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डायमंड जुबली ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। हमने अमृत महोत्सव तो अब मना लिया और अब हम डायमंड जुबली भी सेलिब्रेट करेंगे आने वाले 25 वर्षों में। The male community has to take a pledge to keep their women equally respectable. ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेल कम्युनिटी यहाँ पे ये प्लेज ले, by giving them equal opportunity for the progress of this country. It is only then that things can be changed at grassroots level. In the end, it is apt
to sum up with Mahatma Gandhi's words that man can never be a woman. Man can never be a woman's equal in the spirit of selfless service with which nature has endowed her. So let us make them our partner in every area for our country to grow into Vishwa Guru again. Thank you so much. मुझे बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपकी संस्थान मुझे जब भी याद करेगी, मैं निश्चित रूप से समय निकालकर हाजिर हो जाऊंगी। बहुत बहुत आभार। सभी बच्चों को बहुत प्यार। आप सभी को अगर कोई क्वेरीज हो तो आप निश्चित रूप से मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर यहाँ ओपन हाउस डिस्कशन होता है तो आई विल बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। Thank you, madam. Thank you. It was wonderful listening you. Thank ma'am. you for your wonderful thought-provoking talk. And you also shared your experiences from Thailand. It was really nice to know how women are respected in other countries. You also spoke about the women shining across different fields. You also named Kalpana Chawla. And we know the budget of India has been presented by Honorable Nirmala Sitharaman. No woman can be empowered, and if she should empowered, it should be a financial independence as well as educational empowerment. Yes, ma'am, it was really, really wonderful listening you. Thank you so much. Now I request Mr. P.Y. Kamble sir, Assistant Professor in English, to introduce our resource person, Dr. Anil Bankar sir. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Good morning, everybody. I am here to introduce Mr. Anil Bankar, who is a resource person of today's national webinar. Mr. Anil Bankar, Associate Professor of History and Assistant Director and Head Faculty of Humanities and Social Science, IDOL, University of Mumbai. At present, he is pursuing PhD from Mumbai University. He has completed his graduation and post-graduation from Mumbai University itself. He has a 20 years experience. He has attended and presented 17 papers at national and international webinars and seminars. He has also published 18 national and international, 18 papers in national and international journals. He has successfully organized 3 national level conferences, 1 international conference, and 1 international workshop in collaboration with Commonwealth of Learning, and state and regional workshop at various themes. He has worked as a committee member of the Indian History Congress and Indian Science Congress, a mega event which was organized by University of Mumbai in 2012 and 15. Mr. Balkan, working on various university committees like Selection Committee, CAS, LIC, member of Vice Chancellor nominee. In 2017, he has presented a research paper on Dr. B.R. Ambedkar's perspective on Indian education system at international conference organized by Bodhi International Journal and UPM at Malaysia. In February 2020, he has organized international conference jointly organized with Kash Foundation and IDOL University of Mumbai, and he has presented his paper in that conference named Reviving Pooling System in Indian Higher Education for Bombay Province, Dr. B.R. Ambedkar's Perspectives. His specialization, modern history, history of modern Europe, tribal education and culture. Under his able guidance and monitoring, 1 junior and senior college started in 2013 at Khodala in Mokhada district of Palghar, which is the most remote hill area and tribal area of Palghar district. It is his research output at practical level. In this college, presently 2,500 students are taking benefits of higher education. He is working as a chief advisor and founder member of Girivasi Seva Mandal, M.N. Moite College, Khodala, district Palghar, affiliated with University of Mumbai. He is also an advisory member of the Kash Foundation, Mumbai. He is president of Mumbai University College Teacher, UMASA,
Recently, on 17th and 18th February 2020, he has successfully organized one international multidisciplinary conference on transition and transformation of cities in life, literature and culture, Mumbai chapter, jointly with Kash Foundation. During the lockdown period, the government of Maharashtra, along with University of Mumbai, has started community kitchen for the migrant and poor workers. He is working as a member of that community kitchen. During this period, lockdown period, he has delivered a speech in number of national level webinars and seminars. He has recently organized 4 national level webinars on different health issues during lockdown period, like constipation, stress management, yoga, Ayurveda, etc. Recently, he has been nominated as editorial board, a member of Sambhashan, a peer-reviewed bilingual interdisciplinary research journal of University of Mumbai. So friends, we have an opportunity to listen him. I request Mr. Bankar to enlighten the participants. Thank you very much. Thank you, Dr. Kamble. Am I audible? Yes, sir. Okay. I'm very much thankful to the principal and the organizing secretary of Mahatma Phule College, Panvel, for giving me an opportunity to express my views on this auspicious occasion. Friends, my friend Dr. Bhanudas Shinde sir, he requested me to deliver your thoughts on this occasion, and therefore I accepted this invitation. I'm always associated with this ASC College, Panvel, and earlier, I think 10 years before, they have organized one state level conference, Maharashtra State Conference, and I was the invitee for that conference. And I'm very happy to share with you that Dr. Bhanudas Shinde, he is always associated with the University of Mumbai, and therefore I cannot deny his invitation. And the kind word of Principal Thakur sir, and when I was listening to his achievement and his contribution in the higher education system in the University of Mumbai, really is a dynamic leader. I must congratulate to Principal Thakur and the organizing committee for organizing a wonderful webinar on this very important theme on this 75th year of Indian independence, with a special perspective to empowerment of women. So this is very, very important topic, particularly as per the women empowerment is concerned. And I was listening Dr. Meghna Sharma ma'am, a very enlightening speech she has delivered. And even before her, Principal Thakur, he was also talked very impressively on the various the constitutional and the act which was prepared by the government of India. Friends, I'll use bilingual talk during my presentation, Marathi and English, wherever it is necessary. Very, very important topic it is given to me, and I'm very happy to see that more than 150 participants, they are attending this national level webinar from the various part of the country. So definitely I will use bilingual talk. या सेमिनारच्या माध्यमातून जो टॉपिक मला देण्यात आलेला आहे, स्टेटस ऑफ वुमन इन पोस्ट इंडिपेंडन्स इंडियन सोसायटी. शर्मा मॅडमनी पूर्ण हिस्ट्री आपल्या समोर सांगितलेली आहे. ठाकूर सरांनी त्याच्यामध्ये असलेल्या ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत त्याच्यावरती या ठिकाणी मार्गदर्शन केलेलं आहे. आपण जवळपास 1.5 तासापासून हा वेबिनार या ठिकाणी ऐकत आहात. मला वाटतं की बऱ्याचशा महत्त्वाच्या विषयावरती आपण चर्चा केलेली आहे, परंतु
माझ्या प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून काही महत्त्वाचे मुद्दे जे आहेत की जे यामध्ये अजून डिस्कस व्हायला पाहिजे त्याच्यावरती मी फोकस करणार आहे आणि कंटेम्पररी सिच्युएशनशी रिलेटेड असतील. सो आय विल बिगिन विथ माय प्रेझेंटेशन विथ स्वामी विवेकानंदा's one important quote. There is no chance for the welfare of the world unless the condition of woman is improved. It is not possible for a bird to fly with one wing. This is very, very important quotation by Swami Vivekananda. I'll also quote Dr. B.R. Ambedkar. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं महिलांच्या सबलीकरणाच्या संदर्भामध्ये एक अत्यंत महत्वाचा कोट आहे. ते असं म्हणतात, स्त्रियांच्या सोबतीशिवाय एकता निरर्थक आहे. स्त्रियांच्या सोबतीशिवाय एकता निरर्थक आहे. सुशिक्षित महिलांशिवाय शिक्षण निष्फळ आहे. सुशिक्षित महिलांशिवाय शिक्षण निष्फळ आहे आणि महिलांच्या ताकदीशिवाय आंदोलन अपूर्ण आहे. कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन असेल, कोणत्याही प्रकारचं शिक्षण असेल आणि युनिटी याच्यामध्ये महिलांचा रोल हा अत्यंत महत्वाचा असतो. आणि म्हणून महिलांच्या एम्पॉवरमेंटच्या या सेमिनारमध्ये आपण बोलत असताना भारतीय महिलांच्या संदर्भामध्ये पर्टिक्युलरली स्वातंत्र्याच्या नंतर कशा पद्धतीने एम्पॉवरमेंट झालेलं आहे आणि आजचं सध्याचा प्रेझेंट सिनारिओ जो आहे त्या सिनारिओला अनुसरून आपण या सेमिनार मध्ये चर्चा करणार आहोत. मित्रांनो, शर्मा मॅडमनी ज्या पद्धतीने इतिहासाची मांडणी केलेली आहे, परंतु या मांडणीचा दुसरा जो पार्ट आहे तो म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये स्त्रियांची झालेली उन्नती आणि प्रगती याविषयी आपण विस्ताराने चर्चा करणं आवश्यक आहे. आणि मला असं वाटतं की ही संपूर्ण चर्चा जी आहे ही परिवर्तनवादी महापुरुष आणि त्यांचे विचार यांच्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाहीये. आणि म्हणून सर्वप्रथम मी आपल्या सर्व राष्ट्रपुरुष जे आहेत, महिला ज्यांनी या महिलांच्या उन्नतीमध्ये महत्वाचं योगदान दिलेलं आहे त्यांना या ठिकाणी सर्वप्रथम आपण नमन करायला पाहिजे. राष्ट्रमाता जिजाऊ असेल, अहिल्याबाई होळकर असेल, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले असेल, पंडिता रमाबाई असेल, सरोजिनी नायडू, मदर तेरेसा ते सिंधुताई सपकाळ पर्यंत या सर्व महिला प्रेरणादायी त्यांचा जीवन प्रवास जर आपण या ठिकाणी अभ्यासला तर मला असं वाटतं की महिलांच्या मुक्तीसाठी आपण या सर्वांची प्रेरणा या ठिकाणी घ्यायला पाहिजे. आणि तरच खऱ्या अर्थाने त्यांच्या विचाराने जर आपण चाललो तर महिलांची मुक्ती या ठिकाणी निश्चितपणे होऊ शकते. आणि या सर्व प्रवासामध्ये महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षण विषयक कामगिरी पासूनच महिलांच्या मुक्तीची चळवळ ही खऱ्या अर्थाने सुरू होते. आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या संदर्भामध्ये आपण बोलायचं असेल तर सर्व महिलांनी 2 तारखे या आपल्या डायरीमध्ये किंवा घरामध्ये सुवर्ण अक्षराने लिहून ठेवायला पाहिजे. आणि त्यांच्या मुक्तीच्या संदर्भामध्ये जेव्हा जेव्हा विषय येईल त्यावेळेस ह्या 2 डेट आपल्यासाठी खूप महत्वाच्या आहे. एक आहे 26 जानेवारी आणि दुसरी आहे 3 जानेवारी. या 2 तारखेशिवाय महिलांची मुक्ती ही या ठिकाणी होऊ शकत नाहीये, पूर्ण होऊ शकत नाहीये. 26 जानेवारी 1950 ला भारताचं संविधान याची अंमलबजावणी करण्यात आली. आणि मला असं वाटतं की भारताच्या संविधानाच्या अंमलबजावणीपासून महिलांना ज्या 4 भिंतीच्या आतमध्ये बंदिस्त केलेलं होतं त्याचे द्वार हे या कॉन्स्टिट्यूशनच्या इम्प्लिमेंटेशन पासून सुरू झालेलं आहे. आणि मुख्य द्वार हे त्या ठिकाणी जरी ओपन झालेलं असलं तरी सुद्धा अजून एक फार महत्वाचा टप्पा आहे तो अजून आपल्याला गाठायचा आहे. तो म्हणजे द वुमन शुड बी रिलीज फ्रॉम स्लेव्हरी ऑफ किचन. किचनच्या या स्लेव्हरी पासून जोपर्यंत महिलांची मुक्ती होत नाही, सुटका होत नाहीये, तोपर्यंत महिला सबलीकरणावरती चर्चा करणं या ठिकाणी निरर्थक आहे असं माझं या ठिकाणी स्पष्टपणे मत आहे. आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा आपण या सर्व गोष्टीवरती चर्चा करतो त्यावेळेस भारतीय संविधान हेच महिलांच्या मुक्तीसाठी सगळ्यात महत्वाचं या ठिकाणी प्रावधान या संविधानामध्ये आहे. आणि भारतीय संविधानामध्ये केलेल्या वेगवेगळ्या तरतुदीमुळेच आज महिलांचं या ठिकाणी सबलीकरण झालेलं आहे. आणि या
संविधानाबरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेलं हिंदू कोड बिल जे आहे, या हिंदू कोड बिल आणि भारतीय संविधान हे महिलांच्या मुक्तीचे सगळ्यात महत्वाचे स्रोत आहे. आणि म्हणून आज महिला या जगाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपलं प्रावीण्य या ठिकाणी दाखवत आहे. ह्याला पूर्णपणे भारतीय संविधानाने हिंदू कोड बिल याच्यामध्ये महिलांच्या सबलीकरणासाठी केलेल्या तरतुदी आहेत, या खऱ्या अर्थाने जबाबदार आहे. आणि म्हणून मगाशी ठाकूर सर बोलत असताना भारतीय राज्यघटनेमधील वेगवेगळ्या कलमांचा त्यांनी ज्यावेळेस या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे, त्यामध्ये आर्टिकल 14 असेल, 15 असेल, 16 असेल, 39 असेल, अशा या सगळ्या आर्टिकलचा आपण आढावा जर घेतला तर मला असं वाटतं की इक्वॅलिटीच्या संदर्भामध्ये भारतीय संविधानाने आपल्या प्रस्तावनेमध्ये जो उल्लेख केलेला आहे की कायद्यासमोर महिला असेल किंवा पुरुष असेल हे सर्व समान आहेत, सर्वांना समान अधिकार आहेत. आणि आपल्या प्रिएम्बल मध्ये हे सर्व या ठिकाणी उल्लेख केल्यामुळे खऱ्या अर्थाने महिलांच्या मुक्तीचा मार्ग जो आहे या संविधानाच्या प्रावधानाने सुरुवात होतो. आणि म्हणून भारतीय संविधानामधील तरतुदी या महिला मुक्तीच्यासाठी महत्वपूर्ण ठरतात. आणि म्हणून वी मस्ट अप्रिशिएट द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. त्यांच्या या प्रयत्नामुळे महिलांच्या मुक्तीला या ठिकाणी सुरुवात होते. महात्मा फुलेंचे जे विचार आहेत, सावित्रीबाई फुलेंचे जे विचार आहेत, सर्व परिवर्तनवादी महापुरुषांनी महिलांच्या संदर्भामध्ये जे कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे, याला साचेबंद पद्धतीने भारतीय संविधानामध्ये त्या ठिकाणी बांधण्याचं काम जे आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेलं आहे. आणि म्हणून या महापुरुषांच्या शिवाय महिलांच्या मुक्तीवरती चर्चा करणं हे कुठंतरी मला असं वाटतं की अपूर्ण होऊ शकतं. आणि म्हणून स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये ज्या वेळेस आपण चर्चा करतो महिलांच्या मुक्तीची, त्यावेळेस आपल्याला हिंदू कोड बिल आणि त्याच्यामध्ये केलेले प्रावधान जे आहेत, त्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेला होता की हिंदू कोड बिल हे पार्लमेंटमध्ये त्या ठिकाणी मांडण्यात आलेलं होतं, चर्चा झालेली होती विस्तृतपणे. परंतु काही तथाकथित पूर्वाश्रमीच्या विचारसरणीमुळे हिंदू कोड बिल पास होऊ शकलं नाही. आणि म्हणून हिंदू कोड बिलासाठी राजीनामा दिलेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हा पहिला व्यक्ती आहे, पहिला मंत्री आहे की ज्या हिंदू कोड बिले मध्ये महिलांना इक्वल अपॉर्च्युनिटी, महिलांना समान अधिकाराच्या त्या ठिकाणी तरतूद करण्यात आलेली होती. परंतु काही का असेना बाबासाहेबांच्या राजीनाम्याच्या नंतर बाबासाहेबांना या हिंदू कोड बिलाचं क्रेडिट जाऊ नये याची पूर्णपणे जबाबदारी काँग्रेसने घेतलेली होती. आणि म्हणून त्या संदर्भामध्ये त्यांच्या पश्चात नंतर का होत नाहीये, त्यांनी तुकड्या तुकड्याने या हिंदू कोड बिलाची अंमलबजावणी केली. आणि त्याची अंमलबजावणी झाल्यामुळे आज महिलांचं सबलीकरण हे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला दिसून येत आहे. आपण हिंदू मॅरेज ऍक्ट जो आहे, हिंदू ऍक्ट 1955 पासून तर आतापर्यंत आपण चर्चा केली 2015 पर्यंत निर्भयाच्या नंतरची सिच्युएशन, या सर्व परिस्थितीमध्ये भारत सरकारने वेगवेगळ्या माध्यमातून महिलांच्या मुक्तीसाठी अनेक वेगवेगळे प्रावधाने केलेली आहेत, कायदे केलेले आहेत, नॅशनल कमिशन त्या ठिकाणी बसवलेलं आहे. परंतु ह्या सर्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोव्हिजन असेल, वेगवेगळे कमिशन असेल, कायदे असेल, ह्या कायद्यांची जर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी रूट लेवल पर्यंत होत नसेल आणि त्यासाठीचे मेकॅनिझम कुठेतरी कमी पडत असेल, त्यामुळे आज समाजामध्ये महिलांवरती वेगवेगळ्या पद्धतीने जे अन्याय अत्याचार होत आहे ह्याला जबाबदार आपली सिस्टम आहे. आणि म्हणून या सिस्टम मध्ये जर आपल्याला इम्प्रुव्हमेंट करायचं असेल तर कुठेतरी मेकॅनिझम मध्ये आपण त्या ठिकाणी सुधारणा करायला पाहिजे, अवेअरनेसची गरज आहे. पुरुष सत्ताक पद्धतीमध्ये हजारो वर्षापासून चालत आलेली ही सिस्टम जी आहे ही एका दिवसामध्ये चेंज होणं शक्य नाहीये. परंतु कॉन्स्टिट्यूशनल मध्ये केलेल्या प्रोव्हिजनमुळे हजारो वर्षाची सिस्टम ही ऑल ऑफ सडन त्या ठिकाणी चेंज होऊ शकते, इतकी ताकद त्या संविधानामध्ये होती. आणि म्हणून तिथून पुढे महिलांच्या मुक्तीची पूर्णपणे दरवाजे हे ओपन झालेले आहेत. 26 जानेवारी हा खऱ्या अर्थाने महिला मुक्ती दिन म्हणून त्या ठिकाणी साजरा व्हायला पाहिजे. आणि शिक्षणाची द्वारे ज्या सावित्रीबाई फुलेने ओपन करून दिलेले आहेत महिलांसाठी, त्यांचा जन्मदिवस हा शिक्षण दिन जर खऱ्या अर्थाने साजरा झाला तर मला असं वाटतं की त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन, महिलांच्या संदर्भामध्ये असलेलं हे कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे त्यांच्या योगदानाला न्याय दिल्यासारखं होईल. आजच्या महिला ज्या आहेत या आर्टिफिशियल
पद्धतीने एखाद्या सरस्वतीचं पूजन करता आहेत, परंतु विद्येची खरी जननी ही सावित्रीबाई फुले आहेत. प्रत्येक महिलांच्या घरामध्ये सावित्रीबाईचा फोटो हा असायला पाहिजे, कारण तीच तुमची मुक्तीदायी आहे. आणि म्हणून आज ज्या शिकलेल्या महिला आहेत, अनेक वेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपली कामगिरी करत आहेत, पण तुमचं ओरिजिन जे आहे हे ओरिजिन सुद्धा आपल्या लक्षात असायला पाहिजे आणि त्याची सुद्धा आपण जाणीव ठेवायला पाहिजे. आणि म्हणून या सर्व पार्श्वभूमीवरती आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने ज्यावेळेस या महिला मुक्तीच्या संदर्भात चर्चा करतो, त्यावेळेस प्रेझेंट सिच्युएशन मध्ये सध्या परिस्थिती काय आहे या परिस्थितीवरती सुद्धा आपण फोकस करायला पाहिजे. आणि आपण मोठ्या मोठ्या गप्पा मारतो आहोत, आपल्या समाजसुधारकांनी हे केलेलं आहे, समाजसुधारकाचं नो डाऊट त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आउटस्टँडिंग आहेच, परंतु प्रेझेंट सिच्युएशन मध्ये आपलं काय कॉन्ट्रीब्युशन असायला पाहिजे. ही संपूर्ण पुरुष प्रधान ही जी काही सत्ता आहे, सिस्टम जी आहे, या सिस्टम मध्ये केवळ पुरुषांना या ठिकाणी जबाबदार ठरून चालणार नाही. ही सिस्टम आहे, एका दिवसात ती बदलणार नाहीये, परंतु ही बदलायची जर असेल तर पुरुष आणि महिला या दोघांनी खांद्याला खांदा लावून या ठिकाणी काम करायला पाहिजे, तर याच्यामध्ये चेंज होऊ शकतो. आणि मला असं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये स्त्रियांना प्रोटेक्शन देण्याचं काम हे वेगवेगळ्या ऍक्टच्या माध्यमातून झालेलं आहे. ते तर काम कागदोपत्री दिसतं आहे, परंतु प्रत्यक्षामध्ये रूट लेवलवरती जर आपण गेलो तर ग्रामीण भागामध्ये अजूनही महिलांची स्थिती ही अत्यंत दयनीय आहे. भारत सरकारने कंपल्सरी आणि फ्री एज्युकेशन हे सांगितलेलं आहे 14 वर्षापर्यंत, परंतु हा जो टप्पा आहे या टप्प्याचा आपण प्रत्यक्ष जर इम्प्लिमेंटेशन जर बघितलं आणि आकडेवारी जर बघितली तर मला असं वाटतं की याच्यामध्ये अजून थोडासा पुढचा टप्पा गाठायला पाहिजे की महिलांना ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत जर फ्री आणि कंपल्सरी एज्युकेशन जर दिलं तर एज्युकेशन आणि एज्युकेशन हाच महिलांच्या सबलीकरणाचा सगळ्यात महत्वाचा केंद्रबिंदू आहे. शिक्षणावरती फोकस करायला पाहिजे, शिक्षणामुळेच त्यांच्यामध्ये परिवर्तन होऊ शकतं, हे आतापर्यंतच्या इतिहासावरून आपण बघत आलेलो आहोत. जोपर्यंत तुम्हाला तुमचे अधिकार कळणार नाही आहेत, आमच्यासाठी काय अधिकार आहेत, तोपर्यंत त्या अधिकारासाठी तुम्ही भांडणार नाही, झगडणार नाही, पुढे येणार नाहीये. आणि म्हणून आपल्या अधिकाराची जाणीव जर आपल्याला पाहिजे असेल तर ती एज्युकेशनच्या माध्यमातून होऊ शकते. आणि हायर एज्युकेशन जोपर्यंत तुम्ही त्यांना देणार नाहीये तोपर्यंत त्याचं इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन होणार नाहीये. आज आपण या ठिकाणी चर्चा करत आहोत की 73rd आणि 74th अमेंडमेंटची, की लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटमध्ये महिलांना मोठ्या प्रमाणामध्ये 33% रिझर्वेशन दिलेलं आहे. मला या ठिकाणी या कॉन्फरन्स वेबिनारच्या निमित्ताने हे सांगायचं आहे की भारताच्या पार्लमेंटमध्ये 542 हे सदस्य आहेत आणि महिलांची संख्या जर त्या ठिकाणी 50% आहे तर याची सुरुवात ही पार्लमेंट पासून व्हायला पाहिजे होती. पार्लमेंटमध्ये 50% रिझर्वेशन महिलांना का दिलं जात नाहीये? ते रिझर्वेशन या ठिकाणी जर दिलं तर ऑटोमॅटिक त्याचा फिल्टर जे आहे ते स्टेट असेंब्लीमध्ये होईल, लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटमध्ये व्हायला पाहिजे, परंतु आपण उलटी सुरुवात केलेली आहे. वरतून खाली जर हे फिल्टर झालं तर खऱ्या अर्थाने त्याच्यामध्ये चेंजेस होऊ शकतो. काही का होत नाही त्याच्यावरती चर्चा चालू आहे महिलांच्या रिझर्वेशनच्या संदर्भामध्ये, पण पॉलिटिकल पॉवर जोपर्यंत महिलांना दिली जात नाही आणि पॉलिटिकल लेवलवरती महिला सक्षम होत नाही तोपर्यंत त्या सोशल आणि इकॉनॉमिक लेवलवरती होणार नाहीये. कारण आपण 1975चं उदाहरण बघितलेलं आहे, 1971चं उदाहरण आपण बघितलेलं आहे की इंदिरा गांधीच्या रूपाने जेव्हा एक महिला या देशाचे पंतप्रधान होते आणि या महिलेने संपूर्ण जगाला लाजवेल अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. एका झटक्यामध्ये पाकिस्तानचे 2 तुकडे करून बांगलादेशची निर्मिती केलेली होती. संपूर्ण जग विरोधात असताना एक महिला अशा पद्धतीचं निर्णय घेऊ शकते, ही क्षमता आणि ही डेअरिंग जर तुम्ही पोझिशन वरती गेलात, महिलांना पोझिशन जर दिली तर ते करू शकतात, हे प्रूव्ह झालेलं आहे. आज आपण म्हणतो आहे की देशाचा राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभेचा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन या सर्वच ठिकाणी महिलांचं एक कॉन्ट्रीब्युशन हे मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसतं आहे. परंतु हे जरी असलं तरी चित्र अजून ग्रामीण आणि रूट लेवलवरती भयानक आहे. हे सर्व वरवर आपल्याला दिसतं आहे.
महिलांच्या उन्नतीच्या संदर्भामध्ये 25% टप्पा आपण गाठलेला आहे, पण अजून 75% टप्पा आपल्याला गाठायचा आहे. फार मोठ्या प्रमाणामध्ये मासेसला अजून ओरिएंट करण्याची गरज आहे. त्यांचे अधिकार त्यांना त्या ठिकाणी आपल्याला समजून देण्याची गरज आहे. आणि याच्यासाठी एज्युकेशन याच्याशिवाय दुसरा मार्गच असू शकत नाहीये. आणि म्हणून प्रायमरी एज्युकेशन वरती आपण फोकस केलाय. आता हायर एज्युकेशन वरती फोकस करण्याची गरज आहे. हायर एज्युकेशन वरती फोकस करा तर 3 एरियामध्ये महिलांना सबलीकरणामध्ये त्या ठिकाणी प्रामुख्याने प्राधान्य द्यायला पाहिजे. एक तर पॉलिटिकल लेवलवरती महिला या सक्षम असायला पाहिजे, दुसऱ्या इकॉनॉमिक लेवलवरती महिला या सक्षम असायला पाहिजे, आणि तिसऱ्या या तुमच्या सामाजिक रूढी परंपरा प्रथा चालीरीती या बंधनामधून महिलांना जर बाहेर काढायचं असेल तर मगाशी मी या ठिकाणी सांगितलंय की 4 भिंतीच्या आतून महिलांना बाहेर काढलंय, पण आपण किचन मधून महिलांच्या स्लेव्हरीची अजून मुक्तता केलेली नाहीये. जेव्हा इक्वॅलिटीची आपण गोष्ट करतो आहोत, इक्वॅलिटीची गोष्ट करत असताना स्त्री आणि पुरुष समानता या ठिकाणी असायला पाहिजे, परंतु पेट्रियार्की अजून ते ऍक्सेप्ट करत नाहीये. आणि हे जेव्हा ऍक्सेप्ट होईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने महिलांची मुक्ती ही पूर्णपणे होईल असं मला वाटतं आहे. कारण पुरुष प्रधान सत्ताकमध्ये स्त्रियांनीच किचनचं काम करावं कोणी सांगितलंय? पूर्वीपासून चालत आलेले चेंज करा ड्रास्टिकली. का पुरुष त्या ठिकाणी करू शकत नाहीये? जर हॉटेलमध्ये त्या ठिकाणी किचनमध्ये पुरुष काम करू शकतायत तर घरामध्ये पुरुषांनी किचनमध्ये काम करणं हे या ठिकाणी लाजण्यासारखं किंवा कमीपणाचं लेखण्यासारखं कुठलं काय त्याच्यामध्ये कमीपणाचं काय काही कारणच असण्याचं नाहीये. आणि ही इक्वॅलिटी जोपर्यंत येत नाही, तुमची मेंटॅलिटी जोपर्यंत चेंज होत नाहीये तोपर्यंत महिला मुक्तीच्या संदर्भामध्ये कुठेतरी आपण या ठिकाणी कमी पडतो आहोत असं मला या ठिकाणी स्पष्टपणे जाणवतं आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट की काही सोशल सिस्टममुळे अजूनही त्या आपण कंटिन्यू करत आहोत. एज्युकेटेड वुमन सुद्धा त्याला त्या ठिकाणी जबाबदार आहेत. आणि मला असं वाटतं की याच्यामध्ये कुठेतरी चेंज व्हायला पाहिजे. मी या संदर्भामध्ये थोडंसं काही इंटरव्ह्यूज वगैरे चाळत होतो आणि त्याच्यामध्ये मला एक इंटरव्ह्यू एका IAS कॅन्डिडेटची सापडली की IAS होणारी जी मुलगी होती त्या मुलीला एक प्रश्न विचारलेला होता की कन्यादानाच्या संदर्भामध्ये. कन्यादान याच्यावरती तुमचं काय मत आहे? त्या मुलीने स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की कन्या किंवा मुलगी ही दान करण्याचं हे काय वस्तू नाही आहे. तुम्ही कशा पद्धतीने ह्या सोसायटीमध्ये हे राबवत आहात, ही दान करण्याची वस्तू नाही आहे. कन्यादान हा शब्द मला अजिबात मान्य नाही. हे जोपर्यंत शिकलेल्या महिला समजणार नाही आहेत तोपर्यंत महिला मुक्ती ही कुठेतरी आपण त्या ठिकाणी अपूर्ण आहे असं म्हणतो आहोत. जेव्हा अशा पद्धतीने तुम्ही महिला पुढे येणार आणि या जुन्या रूढी परंपरा ट्रॅडिशन पासून चालत आलेल्या त्या ब्रेक करा. प्रवाहाच्या विरोधामध्ये जोपर्यंत आपण या ठिकाणी जाणार नाही तोपर्यंत महिला मुक्तीवरती चर्चा करणं हे निरर्थक राहील. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या महापुरुषांची जेव्हा आपण चर्चा करतो हे प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने गेलेले लोक आहेत. म्हणून आज आपण या ठिकाणी आहोत. तशा पद्धतीची यंत्रणा, तशा पद्धतीचं कॉन्ट्रीब्युशन हे कंटेम्पररी सोसायटीमध्ये असायला पाहिजे तर महिलांची मुक्ती या ठिकाणी होऊ शकते. आणि वेगवेगळ्या सिरियलच्या माध्यमातून महिलांना ज्या पद्धतीने प्रोजेक्ट केलं जात आहे हे कुठेतरी स्टॉप व्हायला पाहिजे. अश्लीलता आणि महिला हे जे इक्वेशन आहे हे जोपर्यंत बदलत नाही, सेन्सर बोर्डाने याच्यावरती पहिल्यांदा सेन्सरशिप आणायला पाहिजे आहे. आणि महिला सबलीकरणाला पूरक अशा पद्धतीच्या जर तुम्ही सिरियल किंवा पिक्चर त्या ठिकाणी जर दिले तर त्याच्यातून एक पॉझिटिव्ह मेसेज समाजापर्यंत जाऊ शकतो. कारण मीडिया हा प्रिंट असेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल हा सगळ्यात महत्वाचा इन्फ्लुएन्शियल फॅक्टर आहे सध्याच्या कंटेम्पररी सोसायटीमध्ये. आणि याच्या माध्यमातून तुम्ही जे काही प्रोजेक्शन करत आहात त्याचा परिणाम हा लार्जर लेवलवरती होत असतो. आणि म्हणून याच्यावरती कुठेतरी सेन्सरशिप आणायला पाहिजे. आणि महिलांना जे निगेटिव्हली या ठिकाणी प्रोजेक्ट केलं जात आहे ते जर पॉझिटिव्हली प्रोजेक्ट जर केलं तर खऱ्या अर्थाने महिलांच्या मुक्तीसाठी आपण काहीतरी हातभार लावत आहोत असं मला या ठिकाणी वाटत आहे. दुसरा एक महत्वाचा घटक आहे की प्रॉपर्टी मध्ये महिलांना ज्यावेळेस आता इक्वल राईट दिलेला आहे, नो डाऊट असायलाच पाहिजे. परंतु याचं प्रत्यक्ष जर आपण अंमलबजावणी जर बघितली तर ही किती आहे? ज्यांच्याकडे प्रॉपर्टी आहे त्यांच्यासाठी हे ठीक आहे, पण जिथे प्रॉपर्टीज नाही आहे तिथे काय? आणि म्हणून महिला सक्षमीकरणासाठी
जर आपण काही स्ट्रॉंग या ठिकाणी पावलं उचलत असू तर ग्रामीण भागामध्ये किंवा तुमच्या लो इन्कम ग्रुपमध्ये ज्या महिला या ठिकाणी आहेत त्यांना जर तुम्हाला जर पॉवरफुल किंवा स्ट्रॉंग जर बनवायचं असेल तर त्यांना त्या ठिकाणी एम्प्लॉयमेंट देणं गरजेचं आहे किंवा एंटरप्रेन्योरशिपच्या माध्यमातून त्यांना सक्षम करणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी सरकारने प्रावधान करणं गरजेचं आहे. एंटरप्रेन्योरशिप असेल किंवा एम्प्लॉयमेंट असेल त्याच्यामध्ये इक्वल अपॉर्च्युनिटी जर महिलांना दिली, 33% काय बोलताय आपण, 50% त्या ठिकाणी विचार करायला पाहिजे. जेव्हा एका कुटुंबामध्ये एक महिला, ऍटलिस्ट एक महिला जर त्या ठिकाणी रोजगार तिला जर मिळाला आणि सुरक्षित रोजगार जर मिळाला तर त्या अख्खा कुटुंबाचा त्या ठिकाणी सिनारिओ चेंज होऊ शकतो. आणि इक्वल प्रॉपर्टीच्या याच्यामध्ये मला वाटत नाहीये की हे किती प्रमाणामध्ये होऊ शकेल. शहरामध्ये किंवा इतर ठिकाणी त्याचा काही प्रभाव असेल, परंतु ग्रामीण भागामध्ये हा विषय थोडासा त्या ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीने घेतला जातोय. आणि कुठेतरी मुलीचं लग्न झालं, साडी चोळी दिलं की तिचा विषय संपला, प्रॉपर्टीचा बाकीचा विषय जो आहे याच्यावरती सहसा बोललं जात नाहीये. परंतु इक्वल राईट्स त्या ठिकाणी असायला पाहिजे. आणि महिला जर त्या ठिकाणी सबलीकरणामध्ये आपण महत्वाचा स्टेप जर करणार असू, इतके सगळे प्रावधान जर आपण करणारे असू, तर मला असं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र राजकीय पक्ष हा का स्थापन करण्यात येऊ नये. जर पॉलिटिकल पॉवर इक्वल राईट्स आज जर आपण बघतोय की 10 किंवा 11% जर महिलांना रिप्रेझेंटेशन दिले जातं राजकीय क्षेत्रामध्ये, जर काळाच्या ओघामध्ये स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी जर महिलांची स्थापन झाली तर तीच कंटिन्युअसपणे रुलिंग मध्ये राहू शकते आणि सगळ्या पॉलिटिकल लेवलवरती त्यांना महत्वाच्या की पोझिशन त्या प्राप्त करू शकतात. इतकी शक्ती, इतकी ताकद या महिलांमध्ये आहे. आणि तेवढी शक्ती आहे. 50% जर या देशामध्ये महिलांची ताकद आहे तर त्या प्रमाणामध्ये त्यांना रिझर्वेशन हे मिळायला पाहिजे. दुसरी महत्वाची गोष्ट की ज्यावेळेस आपण रिझर्वेशनची चर्चा करतो आहोत, 1/3 रिझर्वेशन देऊन महिलांचं सबलीकरण होणार नाहीये. लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटमध्ये रिझर्वेशन देऊन त्या ठिकाणी सबलीकरण होणार नाहीये. स्टेट असेंब्लीमध्ये द्यायला पाहिजे, पार्लमेंटमध्ये द्यायला पाहिजे. सगळ्याच क्षेत्रामध्ये इक्वॅलिटी जर आपण बोलतो, कॉन्स्टिट्यूशन जर इक्वॅलिटी सांगते आहे तर त्या पद्धतीने त्याचे इम्प्लिमेंटेशन व्हायला पाहिजे आहे. या दुसरा एक त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा अजून मुद्दा आहे की जो या ठिकाणी चर्चेला जायला पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या हिंदू कोड बिल आणि कॉन्स्टिट्यूशनचं प्रावधान करताना सांगितलेलं होतं की तुम्ही जगाचा ज्यावेळेस विचार करता आणि तुमच्या जीडीपीचा विचार करता, जीडीपी तुमचा जेव्हा वाढेल जेव्हा महिलांचं 50% कॉन्ट्रीब्युशन तुमच्या या जीडीपी मध्ये असेल. आणि आज महिलांचं कॉन्ट्रीब्युशन तुमच्या जीडीपी मध्ये किती % आहे? अत्यंत कमी आहे, लो आहे. 10-15% महिला जर त्या ठिकाणी कॉन्ट्रीब्युट करत असेल तर तुमचं जीडीपी वाढू शकत नाही, जगाला तुम्ही कॉम्पीट करू शकत नाहीये. आणि जीडीपी जर तुम्हाला वाढवायचं असेल तर तुम्हाला महिलांचं कॉन्ट्रीब्युशन हे तुमच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये घ्यायला पाहिजे. मग ते सर्व्हिस सेक्टर असेल, तुमचं ऍग्रिकल्चरल सेक्टर असेल किंवा सोशल सेक्टर असेल, कुठेही ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये तुमच्या जीडीपीशी संबंध आहे त्या क्षेत्रामध्ये महिलांना प्राधान्य द्यायला पाहिजे. आणि महिला या जर की पोझिशन वरती आल्या, त्यांना जर सत्ता त्या ठिकाणी प्राप्त झाली किंवा त्यांच्या हातामध्ये जर मुख्य पोझिशन जर आल्या तर त्या प्रूव्ह करू शकतात. आणि प्रामाणिकपणे हे त्यांनी दाखवून दिलेले आजपर्यंतच्या उदाहरणावरून जिथे जिथे त्यांना संधी मिळाली त्या संधीचं सोनं या महिलांनी केलेलं आपल्याला दिसून येत आहे. अगदी कल्पना चावलाचं आपण उदाहरण घेऊ शकतो किंवा अजून वेगवेगळ्या महिला ज्या आहेत वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आहेत. प्रश्न काय होतो इथे की पुरुष सत्ताक सिस्टम मध्ये जेव्हा ह्या शक्तीचा आपण विचार करतो आहे की नाही, शक्तीमध्ये कुठेतरी महिला पुरुषांपेक्षा कमी आहे, ही जोपर्यंत मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत महिला सबलीकरणाच्या संदर्भामध्ये चर्चा करणं हेही निरर्थक राहील. की शक्तीमध्ये कुठेच महिला कमी नाहीये, किंबहुना पुरुषांपेक्षा महिला ह्या जास्त शक्तिशाली आहेत. ॲनिमल मध्ये जर आपण विचार केला की आपण जर वाघाला जंगलाचा राजा म्हणतो आहोत किंवा सिंहाला जंगलाचा राजा म्हणतो आहेत आणि वाघ हा जंगलामध्ये एक महत्वाचा फॅक्टर आहे, परंतु जेव्हा शिकारीची वेळ येते त्यावेळेस जो मेल वाघ असतो त्याच्यापेक्षा त्याची शेरणी जी आहे ही शिकार त्या ठिकाणी शिकारीमध्ये सगळ्यात पुढे असते, कारण तिला तिच्या पिलाची चिंता असते. आणि म्हणून जर शक्तिशाली शेरणी ही जंगलामध्ये शिकार करून आपल्या मुलाचं संगोपन चांगल्या पद्धतीने करू शकते, तिथे जर
मेल हा त्या ठिकाणी डॉमिनंट फॅक्टर असून सुद्धा जर तो मागे पडत असेल तर समाजाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये स्त्रिया या सुद्धा पुरुषांपेक्षा शक्तिशाली आहेत. हे सुद्धा इंदिरा गांधीच्या किंवा कल्पना चावलाच्या उदाहरणावरून आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येतं. संधी फक्त मिळणं हे त्यांना गरजेचं आहे आणि ही संधी जर आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केली तर महिलांच्या मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास होऊ शकतो. महिलांचा विकास म्हणजे समाजाचा विकास, समाजाचा विकास म्हणजे देशाचा विकास. हे समीकरण आपल्याला या ठिकाणी बदलायला पाहिजे आणि म्हणून इक्वल अपॉर्च्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन हे फॉलो करा. खऱ्या अर्थाने राज्यघटना याचं जर व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी जर झाली तर या देशाला जगामध्ये महासत्ता होण्यासाठी कोणी रोखू शकत नाहीये. पण अजूनही आपण त्याच्यावरती फोकस करत नाही आहे. का तर ते लिहिणारे कोण आहे, त्यांची जात फॅक्टर किंवा कास्ट ह्या सगळ्या वर्ण सिस्टम मध्येच आपण इतकं अडकून पडलेलो आहोत ज्याच्यामुळे आपण जगामध्ये सगळ्यात मागे आहोत. आजचं जर आपण या ठिकाणी महिलांचा रेशिओ जर आपण बघितला साऊथ ईस्ट एशियामध्ये तर आपण कुठेतरी सगळ्यात मागे आहोत. अफगाणिस्तानच्या अगोदर आपला नंबर आहे. पाकिस्तान सुद्धा तुमच्या पुढे गेलेला आहे. राजकीय पॉवर महिलांना देण्यामध्ये आपण अफगाणिस्तानच्या फक्त अगोदर आहोत. म्हणजे किती लाजिरवाणी ही गोष्ट आहे की महिलांना अजूनही आपण त्या ठिकाणी सक्षम करत नाहीये. जरी एवढे ऍक्ट किंवा एवढ्या प्रावधान तुमच्यामध्ये केलेले आहेत परंतु पॉलिटिकल लेवलवरती अजून महिला कशा सक्षम झालेल्या आपल्याला दिसत नाही आहेत. ज्या काही बोटावर मोजण्या इतक्या महिला दिसत आहे त्या महिला म्हणजे संपूर्ण महिला यांचं सबलीकरण झालं असं मी मानत नाही. जोपर्यंत शेवटच्या घटकाची महिला डाऊन ट्रोडन मधली महिला ही सक्षम होत नाहीये तोपर्यंत ते सबलीकरण होऊ शकत नाही. आज आपण 73rd आणि 74th अमेंडमेंटचं काय बघतो आहोत. सरपंच जरी महिला असेल तर ती फक्त नावाला त्या ठिकाणी सरपंच असते गावची, परंतु त्याचा प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंटेशन प्रत्यक्ष कारभार जे आहेत एक तर तिचा नवरा करत असतो किंवा तिचा भाऊ करत असतो. महिला ही फक्त त्या ठिकाणी नॉमिनल पोझिशन वरती आहे, नामधारी त्या ठिकाणी आहे. तिला तिचे अधिकार माहीत नाही आहेत का तर ती शिकलेली नाही आहे आणि म्हणून तिचा अधिकार पूर्णपणे त्याचा मिसयूज केला जातो आहे. तिच्या मेल डॉमिनंट असल्यामुळे नवरा असेल किंवा घरातील कुटुंबातील इतर मेल घटक असेल ते तिच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करतायत आणि मग कुठल्या आपण 73rd आणि 74th अमेंडमेंटचा विचार करतो आहोत. जरी समजा सिनारिओ या ठिकाणी बदलत असेल परंतु एज्युकेशनल अवेअरनेस हा त्या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचा आहे. त्याच्यावरती फोकस करायला पाहिजे आणि जोपर्यंत पार्लमेंट पासून असेंब्ली पर्यंत महिलांचं राजकीय त्या ठिकाणी त्यांना इक्वल अपॉर्च्युनिटी दिली जात नाहीये तोपर्यंत ते सबलीकरण कुठेतरी अपूर्ण राहील असं या ठिकाणी मला स्पष्टपणे वाटतं आहे. इकॉनॉमिक सेक्टरचा ज्यावेळेस आपण विचार करतो तर बँकिंग सेक्टरमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र बँकिंग व्यवस्था का निर्माण करण्यात येऊ नये. जर स्वतंत्र बँकिंग व्यवस्था निर्माण केली तर एंटरप्रेन्योरशिप असेल किंवा वेगवेगळ्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये महिलांच्या सबलीकरणाच्या संदर्भातल्या ज्या स्कीम्स असेल त्या केवळ महिलांसाठीच असतील याच्यासाठी प्रायोजन करणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रामध्ये सहकार क्षेत्र आहे. या सहकाराची फार मोठी चळवळ या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये राबवली गेलेली आहे आणि म्हणून अशा सहकार सोसायट्या जर महिलांसाठीच त्या ठिकाणी स्थापन झाल्या, आपण बचत गट वगैरे म्हणतोय, परंतु महिलांसाठी सहकारी सोसायट्या जर स्थापन होऊन त्यांना त्या ठिकाणी जर फायनान्शियल आपण प्रोव्हिजन जर केलं तर ह्या महिला सबलीकरणाची एक फार मोठी सुरुवात त्या ठिकाणी होऊ शकते आणि अशा पद्धतीने त्यांना फायनान्शियली जर आपल्याला स्ट्रॉंग करायचं असेल तर इकॉनॉमिक सेक्टरमध्ये त्यांना त्या ठिकाणी अपॉर्च्युनिटी देणं गरजेचं आहे. बँकिंग सेक्टर, एज्युकेशन सेक्टर, ऍग्रिकल्चरल सेक्टर या 3 क्षेत्रामध्ये जर महिला पुढे आल्या तर ह्या देशाचा GDP हा त्या ठिकाणी बदलल्याशिवाय राहणार नाहीये आणि महिलांचे एम्पॉवरमेंट झाल्याशिवाय राहणार नाहीये. इक्वॅलिटी जेव्हा आपण गोष्ट करतो आहोत तर महिलांमध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी डिस्क्रिमिनेशन आपण बघतो आहोत की एज्युकेटेड महिला असेल, ग्रामीण महिला असेल, शहरी महिला असेल, पुन्हा त्याच्यामध्ये वेगळ्या जाती पाती धर्माच्या ह्याच्या महिला असेल. माझं स्पष्टपणे म्हणणं आहे की या जगामध्ये फक्त स्त्री आणि पुरुष या 2च जाती असायला पाहिजे आणि महिला म्हटल्यानंतर महिला ही एकच जात त्या ठिकाणी असायला पाहिजे. त्याचा ग्रामीण शहरी हा जो डिस्क्रिमिनेशन आहे हे या ठिकाणी असायला नको. मुंबई मधल्या लोकल ट्रेनमध्ये महिलांच्या डब्यामधून ज्यावेळेस महिला प्रवास करतात आणि एखादी महिला जर त्या ठिकाणी प्रसूती होत असेल तिथे जी इक्वॅलिटी दाखवली जाते, सर्व महिला जेव्हा तिच्या संरक्षणासाठी तिच्या मदतीसाठी येतात
ती इक्वॅलिटी सोसायटीमध्ये दिसायला पाहिजे, तेव्हा खऱ्या अर्थाने या महिलांमध्ये एम्पॉवरमेंट झालं असं आपण समजू. परंतु रूट लेवलला ग्रामीण भागामध्ये चित्र अजून बदलणं गरजेचं आहे. मला असं वाटतं की या सेमिनारच्या वेबिनारच्या निमित्ताने आपण वेगवेगळ्या कंटेम्पररी सिच्युएशन मध्ये चर्चा केलेली आहे आणि अजूनही या वेगवेगळ्या अशाच सेमिनारच्या माध्यमातून याच्यावरती ओरिएंटेशन होणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत आपण ओरिएंटेशन करत नाही आहे, अवेअरनेस करत नाहीये आणि महिलांना त्यांचे अधिकार आपण जोपर्यंत समजून सांगत नाही आहे, हे सांगण्यासाठी त्यांना एज्युकेशन ही द्या, कंपल्सरी करा आणि फ्री करा, तर त्यांचं पुढचं काही सगळं होऊ शकतं. केवळ एज्युकेशन 14 वर्षापर्यंत फ्री आणि कंपल्सरी देऊन जमणार नाहीये. ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन द्या, तो बेस आहे, त्यांच्या एम्प्लॉयमेंटसाठीचा बेस आहे. तोपर्यंत त्या कुटुंबाला ते बर्डन सुद्धा वाटणार नाहीये. प्रॉपर्टीमध्ये इक्वल राईट जर तुम्ही दिले किंवा वेगळ्या क्षेत्रामध्ये जर आता महिला त्या ठिकाणी समजा एखादी प्रॉपर्टी जर घ्यायचं असेल तर त्यांना इन्कम टॅक्स मध्ये त्या ठिकाणी सूट दिली जाते. जॉईंट जर त्या ठिकाणी एखादं घर घेतलं तर महिलांचं नाव जर प्रथम असेल तर त्याला त्या ठिकाणी सूट दिली जाते. अशा काही स्कीम्स आहेत. याच्यामुळे जे डिस्क्रिमिनेशन आहे किंवा महिलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जो आहे हा बदलू शकतो. दुसरी महत्वाची टेक्नॉलॉजी, सगळ्यात शेवटचं त्याच्यामध्ये मी बोलेल टेक्नॉलॉजीवरती. टेक्नॉलॉजीने फार मोठा ड्रास्टिक चेंजेस ह्या कंटेम्पररी सोसायटीमध्ये केलेला आहे आणि मला असं वाटतं की या टेक्नॉलॉजीचे जसे पॉझिटिव्ह फायदे आपल्याला दिसत आहेत तसे निगेटिव्ह सुद्धा दिसत आहे. भ्रूण हत्या हा जो प्रकार आहे हा टेक्नॉलॉजीच्या ॲडव्हान्समुळे होत असलेला एक फार मोठा महिलांसाठीचा सेटबॅक आहे. ती जन्माला येण्याच्या आधीच ते अपत्य गर्भाशयामध्ये ते मेल आहे का फिमेल आहे त्याचं आयडेंटिफिकेशन टेक्नॉलॉजी करते आणि तिथेच तिला जन्माला येण्याच्या अगोदरच रोखलं जातं. मला असं वाटतं की ह्याच्यावरती सुद्धा गंभीरतेने विचार होणं गरजेचं आहे. जरी ऍक्ट जरी प्रावधान केलेलं असेल पण त्याची इफेक्टिव्ह अंमलबजावणी आणि मॉरॅलिटी ही त्या डॉक्टर आणि त्या कुटुंबाला जोपर्यंत तुम्ही शिकवणार नाही तोपर्यंत या महिलांचा जो इक्वेशन आहे 1000च्या याच्यामध्ये जर समजा 1040-27 असेल तर हा कमी होण्याला कारण काय याची सुद्धा शोध घेणं गरजेचं आहे. मला असं वाटतं की या सर्व गोष्टीवरती आपण सर्वसमावेशक चर्चा करतो आहोत आणि ही संधी या महाविद्यालयाने आम्हाला उपलब्ध करून दिली आणि आपल्या समोर हितगुज साधण्याचं संधी दिली त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे आणि या ठिकाणी मी थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you for such an insightful talk. At your home itself, and equal opportunities and equal rights should be given as given by our constitution. सर, स्त्रियांचं सक्षमीकरणासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू बिल संसदेत मांडलं, परंतु ते पास होऊ शकलं नाही. हिंदू कोड बिल तेव्हा जर पास झालं असतं तर आज स्त्रियांच्या जीवनातील संघर्ष संपला असता. कारण हिंदू कोड बिल म्हणजे स्त्री स्वातंत्र्याचे, सन्मानाचे, मुक्तीचे गीत होय असं मी मानते. सर, रिअली व्हेरी व्हेरी थँक यू फॉर शेअरिंग युअर थॉट्स विथ अस. Now we move on to the next session, and that is the feedback. I request all the participants to fill the feedback form which has been shared with you in the Telegram as well as in the chat box. I will also like to request Dr. Vidhate from Radhabai Kale College to speak few words about today's webinar. A feedback from the participant is requested. Excuse ma'am. Yes, sir. Is Ganesh Mali. Okay, fine. Please carry. Yes. So please carry on, sir, with the feedback. Yes, Ganesh Mali, sir, I request you to say a few words about today's webinar. We want to hear feedback from you. I think there is some technical glitch or the person is not able to hear us.
Yes, madam, I am audible. Yes, sir. Yes, sir. There is some problem regarding the network connection, ma'am. It's So, okay, fine, sir. You can continue, sir. pardon, ma'am. Yeah, you can continue. Yes, yes. मैम, सबसे पहले आप सभी आयोजनकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने रय शिक्षण संस्था के ही राधाबाई काले महिला महाविद्यालय में इतिहास का मैं एक अध्यापक के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ और अपना जो मेरा प्रिय कॉलेज है सबसे महात्मा फुले कॉलेज, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब है हमारे, वो हमारे मार्गदर्शक है, वो हमारे मित्र है, वो हमारे सहयोगी है, प्रेरणा स्रोत है, गणेश ठाकुर साहब जी। उन्होंने ही मेरा जो महात्मा फुले कॉलेज में जो फुल टाइम जो अप्रूवल है उसके बारे में उन्होंने जो मेरे लिए कोशिश की, इस वजह से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रय शिक्षण संस्था के महात्मा फुले आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज पनवेल के इतिहास विभाग की सहयोग से IQAC सेल और वुमेन डेवलपमेंट सेल द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष की उपलक्ष्य में आयोजित जो राष्ट्रीय वेबिनार वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए मुझे मेरा फीडबैक या मंतव्य प्रकट करने का आपने जो अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं डॉक्टर गणेश विदाटे, हमारे रैयत परिवार के कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर गणेश ठाकुर महोदय जी का, मेरे मार्गदर्शक और मित्र डॉक्टर BD शिंदे सर, डॉक्टर सुनील परदेशी सर, वुमेन डेवलपमेंट सेल की चेयरमैन डॉक्टर लीना मेसराम मैम, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के कोऑर्डिनेटर मेरे सहयोगी प्राध्यापक सोपान गोवे जी, इन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर की भागीदारी बनाए हेतु कार्यरत महिला सशक्तिकरण के विषय पर जो बौद्धिक मंथन इस वेबिनार में हुआ, वो बहुत ही उपयोगी और चिकित्सक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा खुद का मंतव्य है। विशेषतः महिला सशक्तिकरण के विषय में डॉक्टर मेघा शर्मा जी ने जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका, आधुनिक यूरोप की आंदोलन के संदर्भ में जो नैतिक मूल्य उस आंदोलन के गर्भ से उजागर हुए, उसका नारीवाद के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो परिशीलन किया, वो बहुत ही परिणाम कारक था। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजों की सत्ता भारत में स्थापित होने के बाद जो प्रबोधन का आंदोलन इस भारतवर्ष में शुरू हुआ, उसमें हमारे समाज और धर्म के सुधारक, जिनमें महात्मा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी आदि सुधारकों ने स्त्री पुरुष समतावादी मूल्यों के प्रस्तावना हेतु जो प्रयास किए, उसका बहुत बढ़िया उन्होंने मंतव्य रखा। मैं मैडम का तहे दिल से इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि हम इतिहास के विभिन्न पन्नों को देखो तो कहीं भी पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया ऐसा हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है और उन्हें समान दर्जा भी नहीं दिया गया है। महिलाएं हमेशा समाज में अपने अधिकारों और स्थिति के लिए लड़ाई करती रहती दिख रही है। भारत की महिला इससे परे नहीं थी। हमारे स्त्री और पुरुष प्रबोधनकार इससे संचित थे। महिलाओं ने कई बार समानता के लिए आग्रह किया ताकि वो पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त जीवन जी सके। अगर स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे हम बात करें तो इसमें निश्चित रूप से सुधार हुआ है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे घटनाकार डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने निभाई है, जिन्होंने भारत की समतावादी संविधान और हिंदू कोड बिल के जरिए भारत में संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को उन्होंने गतिमान किया। आज शिक्षा, रोजगार और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं ने जो ऊंचाइयां हासिल की है, उससे यह उजागर होता है कि महिला किसी भी तरह से पुरुषों के पीछे नहीं है। हमारे जो दूसरे व्याख्यानकर्ता थे अनिल बनकर जी ने अपने व्याख्यान में महिला सशक्तिकरण के विषय में उसको बहुत अच्छी तरह से उजागर किया है। हमारे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक डॉक्टर गणेश ठाकुर साहब जी ने अपने स्वागत संबोधन में संविधान के अनेक अनुच्छेदों द्वारा महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त हुए, उसके बारे में जो अपना मत प्रदर्शन किया, वो एम्पावरमेंट और वुमेन के विषय में, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के विषय में उनकी जो रुचि है, उनका जो ऐतिहासिक अध्ययन है, वो उजागर करता है। तो आपने
वेबिनार में एक बहुत अच्छे विषय पे जो परिशीलन किया, जो इधर बौद्धिक भेद हुआ, वो मेरा ऐसा एक मत है कि ये विषय या यह सब्जेक्ट हमारे समाज में जो नारीवाद के सिलसिले में हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदलने में जरूर अच्छा या फलदायी साबित होगा. So thank you very much, ma'am, and thanks for organizing to giving me such opportunity to express my feedback view. Thank you very much, and hearty congratulations. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your valuable words. Now, I will not take much of your time, but I know this would be incomplete if we did not express vote of thanks. So I request Ms. Nandini Gaikwad, Assistant Professor in IT, to propose vote of thanks. Over to you, madam. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, one and all the respected dignitaries and participants present on the online platform for the national webinar on 75 years of independence with spatial perspectives to empowerment of women, which is jointly organized by Department of History and Women Development Cell in association with Internal Quality Assurance Cell of Mahatma Phule Art Science and Commerce College, Panvel. It is a privilege and a joy for me to extend a vote of thanks to all those who have contributed for the successful organization of this webinar. At the outset, I express my sense of gratitude towards today's keynote speaker and resource person of this webinar. First of all, I would like to thank Honorable Dr. Meghna Sharma, Madam, for accepting our invitation and delivered the keynote address. Madam, you blessed this occasion with your scholarly talk on women empowerment. Thank you, Madam, for sharing your valuable times and views with us. I am also thankful to today's resource person, Honorable Mr. Anil Bankar, who shared a deep sense of knowledge about Hindu Code Bill and the women's rights in Constitution, and supported this webinar by all means and enlightened the occasion with his talk during the webinar. I sincerely put on record my gratefulness to our dynamic and visionary principal, Honorable Dr. Ganesh Thakur, sir, for his motivation and guidance in chalking out the all formalities of the webinar. Thank you, sir, for your support and faith. I am very much thankful to Mr. S.L. Gove, sir, convener and IQAC coordinator, Dr. B.D. Shinde, sir, organizing secretary and head department of the Department of History, Dr. Leena Mishra, madam, chairman of Women Development Cell, for organizing this webinar. I should be thankful to our technical team, Dr. Girish Gund, sir, Ms. Sonu Tanwar, ma'am, and Dr. Leena Mishra, madam, to coordinate this webinar successfully. I must say thank you to our teaching for fraternity for their active involvement and contribution for making this function a happening event. I must appreciate and mention the involvement of all the participants from the various states of India. I am grateful to all the participants who made the webinar a happening reality. Thank you all once again. Thank you so much. Stay safe and stay healthy. Thank you, ma'am.